Afternoon, sir. Good afternoon, all the participants and team of IHM Faridabad who has joined for this wonderful webinar, which is on the topic of energy conservation in hotels, hotel industry, environment, solar energy, and efficient use of resources. This webinar is organized by Petroleum Conservation Research Association, which comes under Ministry of Petroleum and Natural Gas. And the speaker for today, we have Mr. K. Mahajan. And I would now request our principal, sir, Mr. Atul Shukla, to kindly welcome our speaker for the webinar and the other participants. Over to you, sir. Good afternoon to Mr. Mahajan, Shweta ma'am, and my students. I'm really grateful to Mr. Mahajan that earlier I'm सबसे पहले गुस्ताखी चाहूँगा और माफी भी चाहूँगा because earlier when I was talking to me, I think for last 2 months he is taking this initiative. So today I just gone through his profile, and he is a big shot. Is a BE mechanical. Then I can understand that auditor, this energy auditor or ISO auditor. These are the big shots. There is a rare thing, and he is holding such a nice thing. We hoteliers are nothing in front of him. So I was thinking that some office wala from Petroleum Ministry is calling me, and today when I saw that he himself is a speaker, so grateful to you, sir. And I really want to my sincere apology to you. Yeah, I was thinking that you are from office. I thought that you yourself is a resource person. So grateful. I still remember one of my friend, not friend, I say that he was my he was more like my elder brother, and he was also a mechanical engineer from Kharagpur, IIT Kharagpur, and then he was also ISO energy auditor, and he worked with a lot of MNC and this thing. So I know that how tough to achieve this ISO things, and to become energy auditor is a very a great portfolio you are having. So grateful to you. And we are like this, that anything which we get, we are getting free of cost. We feel like लेकिन we desperately need energy conservation because our main use is one of your petroleum product is like gas, or whether we right now in my both institute we are using LPG. But later on we are maybe shifting to natural gas also. So and our energy conservation, I'll say that is 40 to 50 cylinder consumption is there almost per month. So if we are able to save something or some resources through this, we will achieve a big goal in our. And I'm grateful to you, sir, that you have given your valuable time and you are there with us for this webinar. Thank you, sir. Okay, thank you very much, sir. Over to Shweta, ma'am. Thank you so much, sir. And I once again welcome Mr. K. Mahajan for this wonderful topic which you are having. And sir, looking as sir mentioned, the profile you have, I'm sure that it's very difficult to achieve that type of a profile which is there. So I congratulate you for that. And I would want that you can, because we are technically not very much sound of how many things you have done to actually, have that profile. So I would want and request you to introduce yourself to our students so that they can also have that knowledge of and little guidance of how these things, can be pursued later, maybe as a career. So thank you so much, sir, for your valuable time, and over to you, please. Okay, thank you very much. So I am grateful to Principal Shri Atul Shukla ji, Senior Faculty Madam Shweta ji, and for providing me this opportunity to interact with the student of Institute of Hotel Management at Faridabad, along with some faculties. So I'm grateful for this opportunity, and I'm also thankful to Principal and Madam Shweta for
giving a nice introduction about me. And after my interaction with the principal, Shri Shukla ji, so this I could organize this program, webinar today, and hopefully will be doing full justice with sharing my knowledge about this very important topic. So as Madam Shiveta has asked me to introduce myself more with the students so that they can also learn. So I am a mechanical engineer. So should I start sharing? I will start sharing. Okay. Sir, sorry, I was unable to get you. Pardon. Boliye. You want to share your presentation right now? Yeah, I'm sharing. Okay, all right, sir. Thank you. Is it okay? Screen is visible? Yes, sir. It is coming. It is coming, sir. Okay. So this is the topic of today: energy conservation, energy efficiency, efficient use of resources which are available at your disposal. Whether you are working in a hotel, whether you are working in any other organization, whether you are still in institute, whether you are at home also. So that resources which are available with you, how to use them more efficiently and conservatively, so that you can save something for future, for your future and the future nations also. That is the more important. And over and above, the advantage of concentrating on these subject is our environment is directly, you can say, polluted or not polluted because of the more use of these energy resources, which are fuel-based energy sources, which are creating pollution in the environment. And as you know, environment is very important these days. Our environment, pollution in the environment is causing a lot of problems, health issues, health infrastructure requirements, medicines, and all. So these things are required more and more, and the country has to arrange for that. That is also very important. Overall, all this environmental pollution is also leading to climate change and warming. This is a very, very important issue before all the human beings on this planet Earth. And every country, whether it is a developed country, developing country, poor country, rich country, every country, the people living in them, they are affected because of the severe conditions because of this climate change and resulting into climate change and severe conditions climate change. So this will be discussing in detail later on. So this is the importance of the topic. Now coming to Sir, can I say this is, something? Mahajan, sir. yeah. I Boliye, also sir. want, because this topic is somewhere we cover the same topic in our syllabus also for Okay, these fine. students. And just to let these students also get aware that these points are definitely this is one of the topic when any interview is happening and they have the group discussion. This is one of the topic which has been asked by the interviewers. And I request the students that whatever new is happening, you please jot down these points, because this is something which is discussed now and it will be a topic which will be discussed down the line in near future always. So note down your Okay, fine. points so that you have a lot of points, and especially it is a part of your syllabus also. So try to understand the new things which sir is will be sharing with us. Thank you, Majan Okay, sir. Over to you. fine. Just a minute. Just a minute. So just proceeding further. So this slide shows the department on behalf of which are the department with which I am associated. I am organizing this webinar, that is PCRA. You can see on top right corner PCRA. Its website is pcra.org.
But I would ask the students also that you can go to this website, pc.org, and you will find out a lot of information regarding energy efficiency, energy conservation in all type of areas, whether it's the industry, whether it is an hotel, whether it is service industry like IT industries or like that, even at homes or transport sector. A lot of information is there. You can gain that, you can reach that information by going into this website, pcra.org. Today's program is called institutional training because yours is an institution. So this training webinar is called as institutional training. So on behalf of PCRA, we welcome you all, the participants who are in this webinar. And now further moving. This is something about, I am a mechanical engineer. I did my mechanical engineering degree from Punjab Engineering College, Chandigarh, long back. I passed out in 1968. As you might have seen my video photo in that joining, so I am a senior citizen. So I am a retired person. I have worked with Tata Chemicals in Gujarat. You are using daily at your homes or everywhere. So that is a major product there in Tata Chemicals in Gujarat. So the Tata salt is manufactured there. They are manufacturing a lot. They are packing in some bags, etc. And later on, that salt goes to some people who are making packages, small packages, which are available in the market these days. So I am a chartered engineer also. Chartered engineer means who can certify something like supposing there is a damage because of fire or some other incident in an industry or any place, and the insurance company wants what is the estimate, how much damage is there, how much we can claim from the insurance company. A chartered engineer can give that. And there are many other areas also a chartered engineer give. I am also a lead editor for ISO. ISO means a standard organization for QMS, Quality Management System. So I am also a leader, like wherever people want some audit with respect to energy consumption, whether it is the power, electrical power, or some other sources of energy. So audit is carried out where is something can be done to improve upon consumption. So I am associated with PCRA, as a consultant, you can say, as a professional, as a faculty also. I am also associated with another department, EESL. It is also a Government of India department with this power, Energy Efficiency Services Limited. Then there is another department which I have mentioned here, that is BEE, Bureau of Energy Efficiency, which is also a major department in the energy efficiency side, which is formulating or proposing some policy amendments to the Government of India for implementing in this energy efficiency and conservation. So salient features in hotel management, hotel engineering, use of power, energy resources like LPG and PNG. You know, this webinar will be helping you when you go out in any sphere, whether you go to a hotel or anything. There you will be called upon to have energy efficiency and energy conservation. Efficiency means use energy. You use energy, but in an efficient way. If there is a party to reduce the consumption, to carry out some activity, you have to. Conservation means somehow you can avoid the use of energy. If you can, that is more related with your lifestyle. Like for you people, when you go in a hotel, what are the energy resources which are used in a hotel? Major is the electrical power. So you will have to look after in a hotel. When you are joining a hotel, you are working in a hotel, you will be asked, will be given a responsibility to minimize the use of electrical power. How you can do? You can do in many areas. I think first and the foremost is the use of electrical power in air conditioning. You know, normally, as you know, all hotels are air conditioned. They are heated in the winter. They are, you can say, cooled in the summer season.
So a lot of power is consumed in that. So how you can contribute in the saving of power in air conditioning and other electrical power uses. How you can do, like maintaining the temperature, what is the best possible temperature, affordable temperature. As we keep the air conditioning temperature more lower side, the power consumption increases. Just take the example, for 1 degree centigrade temperature setting lower than the requirement, your power consumption goes up by 4%. So there are many other ways also to prevent the low cooling effect. If you have air conditioning system is on, so cooling system should not be wasted. That means all your doors and windows, they should be not be, there should not be any area where direct sunlight is coming. Your curtain should be that, and all around the hotel there should be greenery also, so that also impacts the cooling effect all around the surroundings also. And there normally you might have seen in a hotel, there are at the main entry there are double doors. What is the purpose of double doors? Their purpose is the same thing. You should not lose the cooling effect inside. So, and there is a lot of power used in the lighting also. So how to save power in the lighting, more use of energy efficient lighting source like LED lights, and where you more light, where you require less light, that consideration of that, wherever area you require less light, you have to provide the less light. If you at a place more light, you provide more light. Then there are energy consuming you can say this area like your laundry area. There are washing machine, there are dryers, they are using a lot of power. So how to efficiently handle those washing machines and dryers, etc. There you can have. And another source of energy is LPG or PNG. Many hotels, wherever PNG is PNG means piped natural gas. That is where they are using PNG. And where it is not available, you are using cylinder, LPG, liquefied petroleum, which is normally people are using in the households also. So a lot of that LPG is used for food preparation in the hotels. So there you have to consider how to use that efficiently. That means you must consume in LPG or PNG in a more way, proper burning, blue flame, etc., and all that, using more pressure cookers, and don't waste any unused flame, etc. So there are many other ways we'll be discussing later on also. I'm just giving you the. Then there are many freezers and cold rooms. In hotels, a lot of things are stored in the refrigerated manner, like non-veg, etc., beef, fish, or something in cold rooms. So there is a lot of power, and there are many cold rooms, not one or two. There are many. There may be 10, 12, 15, depending on the capacity of the hotel and needs of the hotel. So there is a lot of scope in that. Moving further, we will see all these things in detail later on. Restaurants also, front office, housekeeping shop there. You can say you can utilize the housekeeping shop also in energy consumption. Housekeeping shop, they can look after which are the areas which need lighting, no lighting, like that. Supposing some occupant of the hotel has left the room, has checked out. So housekeeping shop will prepare the room for future use. And in that time, they can look after all the lights are off or not, air conditioning system is off or not, even geysers, etc., they are off or not. There should not be water wastage also. All these things about guests and service to them, practicing food preparation, serving the food, behavior aspects. So these are over and above energy also. I have written some things requirement for people who are working in the hotel. Behavior means how to deal with the customers. When you are in a hotel industry, your behavior will also reflect upon the type of hotel which a customer is living in or enjoying the food. That will also reflect on that. So your behavior should be
very soothing or very comfortable with the, they should feel comfortable, all that. And contribution to environment, ecology, energy security, and sustainability. Sustainability is a very important, that means sustainability means your use of all material, raw material or energy resources or anything, sustainably. That means use more efficiently, conservatively, so that these resources do not exhaust your lifetime or in your period, and it should remain for future period also, future generations also. That is the sustainability. So moving further, I will request you chalk or note down your questions, any doubts, etc. later on, then we can later on. In India, Energy Conservation Day is celebrated every year on 14th of December. I'm audible now? Anybody? Please let me know. Okay. Yes, sir. And my slides are moving. Yes, sir. Ji sir. My slide in front of you is Energy Conservation Day. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. The presentation is visible, sir. Okay. Yes, So sir. Energy Conservation Day. Okay, fine. So Energy Conservation Day is celebrated in India every year on 14th of December. Okay, and this day focuses on making the people aware about global warming, climate change, and then there is a promotion of efforts towards saving of energy and its resources. Exact meaning of energy conservation is using less energy by avoiding the unnecessary use of energy. Use energy efficiently is very necessary to save it for the future use for future generations. Here I will just give you a small, you can say, hint. What is the difference between conservation and efficiency? Conservation is, supposing you are studying in the IHM Faridabad and you are living in Faridabad, and you are daily going to the institute and coming back to your home using cycle only. It is possible for you to mute a cycle, but you go for bike or scooter or car. So that is a point of conservation. If you avoid the use of bike or scooter or car, but use only vehicle, ताकि आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगा, so that is conservation. But what is efficiency? Efficiency means supposing your house is located at a very far off distance, you can't have every day muting on cycle and you use bike. But bike needs service. You have not gone service since long, and your average per liter of petrol has gone on very much, and you go for service of the bike, and your efficiency, your this mileage improves. That is your energy efficiency. So both that is you can say in a simple way the difference between energy efficiency and conservation. Moving further. So on the Energy Conservation Day of 14th of December, National Energy Conservation Awards are given. Ministry of Power, Government of India has launched a scheme in 1991 to give national recognition through, it is a national recognition through awards to industries, establishments, institutes, and other areas who have taken special efforts to reduce energy consumption while maintaining their production or service level. That is the point. Right? Supposing a industry is there, they are manufacturing something, production. So for the same production, in a year, they have reduced the energy consumption. They have brought down taking some effort, putting in some effort, taking some efforts in that direction. They have brought down the consumption of electrical power, coal, diesel, petrol, or whatever energy sources they are using in the industry for the same production. That is your conservation and efficiency. So those industry people will be asked to apply for those awards, and who have done better than others, they will be given the awards.
first, second, third are consolation prize. Similarly, for service industry also, your hotel industry comes under service industry. So hotel, supposing your hotel has brought down your consumption in a particular year under consideration, you have brought down the saving, you have done some saving in the air conditioning, you have brought down the consumption of LPG or PNG in food preparation, and some other method brought down, even a diesel consumption in the power backup diesel generator sets are there in also, industries also. So all these things combined for the same level of service attending to the customers or food preparation, if you have brought down your energy consumption, you will be considered for that award. Again, how much you have done with respect to other hotels, so they will be given that. So that is a point which I wanted to highlight. So who are the industry sectors which are considered for energy conservation award? Thermal power plant, petroleum refinery, petroleum pipeline, aluminum industry, ceramic industry, dairy industry, fertilizer industry, or there are many types of industry. Similarly, in the lower, in this slide, the lower one, I am reading that government offices, corporate offices, they are also considered. In large company offices, there is a lot of power consumption in air conditioning and in other lighting also, then cooling also, and water system also. So there are a lot of power consumed. So they are also considered for those awards. So these are the activities which are different by PCRA. You know, PCRA is doing a lot of activities, this type of activities. So they are doing, just a minute. Okay, so field sector, industrial sector, that energy audit, studies, training programs of the workman, supervisor, engineers, officers, different type of training programs there in the industrial sector. Similarly, in the hotel also, I have organized myself is a lot of training program in different hotels in Delhi also, 5-star hotels, Haryana also, in Punjab also. So that type of awareness creation through training program is done. Transport sector also, PCRA is doing a lot of training for the people who are working in transport sector, like you can say Haryana Roadways, Punjab Roadways, Rajasthan Roadways, UP Roadways. So the people who are working in the workshops there are the drivers who are managing the vehicles. So to train them on best maintenance of the vehicle and to how to drive in an efficient way, so that overall consumption of fuel in the transport is reduced, efficient use. Domestic sector training programs are the ladies and housewives, children in the schools also, these are different type of programs. Then there are programs for agriculture sector, like the people, there are people in with PCRA who go to the villages and they organize some meetings with the people, farmers who are working in the agriculture sector, to advise them, to give them some tips to saving of diesel, etc., electrical power in the homes, in the diesel electrical machinery like tractors, harvesting machines, irrigation pumps are there. They are driven by diesel engine pumps are there. So small steps which can be given to the farmers also. So all these activities are done by the PCRA, Petroleum Conservation Research Association. Energy conservation is a, now coming to the what are the differences of energy. You know, in this slide, if you see coal, natural gas, petrol, and diesel, these are the four you can say main sources of energy which are normally used all over the planet Earth. Coal is used in thermal power plant, coal is used in steel plants,
is also used in boilers and some furnaces as well in the industry. Natural gas, as you saw, natural gas is also used in the form of PNG or CNG. These are different forms of natural gas. Petrol and diesel mostly in the transport sector they are used. So my point is we consider energy conservation as the fifth fuel. Four fuels are these: coal, natural gas, petrol, and diesel. So if we resort to conservation of these resources, whatever saving that we can consider as an additional fuel generation, additional fuel is generated in the form of fifth fuel. That is the importance attached with that. Now, second paragraph of this slide, world energy consumption has gone up by 45% since 1980. 1980 onwards, energy and its resources consumption has gone up by 45%, 1.5 times. And it is projected to be 70% more as compared to 1980 by 2030 and double by 2050. That means as we are increasing, as the consumption of fossil fuel-based energy resources increases, your environment is getting more and more polluted. Greenhouse gases generation is getting more and more. And impacts of climate change and global warming are also more drastic, more deadly, more impacting the general public. So that is the point here. And India has a goal to carbon neutral by 2070. You know, about in the month of November, there was a conference, world conference in England. So here all countries have given some targets to be achieved to have some conservation and efficiency and reduce the consumption of fuel-based energy sources and go for more renewable energy like solar. So India has given a target that we will be carbon neutral by 2070. What is the meaning of carbon neutral? Carbon neutral means when 2070 come, we will be not adding any additional carbon dioxide in the environment. Whatever carbon dioxide we will be generating through use of coal, diesel, or PNG, CNG, that means natural gas, we are adding into the environment. Our system will be such that we will be having some taken by that time to reduce the carbon dioxide emission environment created by us. हमारे पास ऐसे एक उपकरण लगे होंगे जैसे कैप्चरिंग एंड सिक्वेंटेशन होता है, कार्बन एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैप्चर करके उसको स्टोर कर सकते हो ताकि उसका लेवल कम हो. By adding more greenery in the environment, that also helps in reducing the carbon dioxide in the environment. So, and there are other things that we will be going for more dependence on energy, renewable energy like solar and wind. So that type of steps can help in achieving the carbon neutral. Moving further, that is the power sector scenario of our country. India is the third largest producer of electrical power and third largest consumer of electrical power. Above us are China and United States. And in our country, there is a installed electrical power generation capacity of 356 gigawatt. 1 gigawatt is equal to, can anybody tell me? But 1 gigawatt W is equal to how much? Any student? 1 gigawatt power is equal to 1000. Am I audible now? Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है? 1000 watt. तो 1000 megawatt. 1 gigawatt is 1000 megawatt. That means 356 multiplied by 1000, so much megawatt is the electrical power generation installed capacity. And it includes thermal power plant, hydropower plant, nuclear power plant, all these things. That is the installed capacity.
Third paragraph is potential of renewable energy. Why it is called renewable energy, solar and wind energy? That means it gets renewed. Renewed means अपने आप फिर से उसी लेवल पे आ जाती है, उसमें कोई कमी नहीं आती. Like solar energy है, how whatever amount of solar energy we utilize for either producing electrical power or for heating purposes, not be any shortfall in the availability of solar. Okay. Similarly, wind energy. Winds are blowing all over. It is blowing in the USA also. It is blowing in India also. It is blowing in China also. It is blowing in America also. So it depends upon you how much you are able to utilize that potential of wind energy for your use. So in India, total potential of renewable energy is 900 gigawatt. Okay, that is the potential. That means we are not, as of now, we are not utilizing that. We are far below. We are here only about 100, 120 gigawatt, which is the renewable energy as of now we are generating through solar energy, wind energy like that. But potential gigawatt. And this 900 gigawatt includes 750 gigawatt solar energy, 102 gigawatt wind energy, 20 gigawatt small hydropower, not large, small hydropower, and 25 gigawatt bioenergy. Bioenergy means those energy resources which are bio-based, like your waste material, waste, your crop waste. जैसे up in Punjab, Haryana, there's a lot of you can say burning of residue of crop. उसके लिए जो, if we can convert that instead of burning, if we convert that into usable energy, like conversion into diesel, biodiesel or biogas, that is to be done. Similarly, as you know, in Delhi there are 2-3 plants which are converting our waste into biogas. You know, in Delhi there are some plants are there which are converting and reducing the storage of waste, which is like many heaps, etc. in Delhi area nearby the waste. So converting that waste into useful energy, that is the point. And our target is, what is the target? India government has target of 175 watt. We should have the renewable energy by 2022, by the end of this year, and 500 gigawatt by the end of 2030. That's our target. Potential is 900 gigawatt. Okay. Then another major step taken by the government of India is we must have electrical mobility. Most of the vehicles on the road should be electrical operated. By 2030, at least we want 50% of the vehicles owned by the governments, central governments, state governments, or who are associated with the government department, they should be at least 50% on the electrical vehicle. They should be electrical vehicles by that. Now coming to energy resources. Primary source is primary fossil fuel based energy is petrol, gasoline, diesel, heating oil, kerosene, liquid petroleum gas, LPG, and jet fuel. These are the primary energy fuels which are available at our use, for our use. Now, I just want to ask a question here to the students. What is the source of diesel, petrol, which we are getting in our vehicle at petrol pump? CNG at a CNG station, we are getting. From where it is coming? What is the source of petrol? Please, come on. So crude Anybody oil. can tell me? Sir, repeat this Very question. good. Repeat question is from where we are getting petrol and diesel in our vehicle, car or bike or something. We go to the petrol pump, we get it. But from where it is coming? Who Sir, is producing It's that? obtained from crude oil.
क्रूड ऑयल, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो बेसिकली रॉ मटेरियल इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जिसे हिंदी में बोलते हैं कच्चा तेल। We are getting at many places below the ground in India also and all over the world also. Major producing countries are Gulf countries, Iran, Iraq, Saudi Arabia, even America. There are many places in America which which are having large, you can say, stocks of crude oil below the ground. And India also, like Assam side and Gujarat side and many other places, there are some oil wells, tel ke kuएं. So that crude oil we're getting from that places. In the sea below also we are getting at some places, like in near Bombay, we are getting from an area which is called Bombay High. From the sea below also getting. Now here I want to tell you, this crude oil go an oil refinery or petroleum refinery, and that refinery, that industry, oil refinery, is processing that crude oil and producing petrol, diesel, kerosene, LPG, and jet fuel. Okay, refinery. Like in our Haryana, there is a Panipat refinery. In Punjab, there is a Patinda refinery. Okay, and all over India, there are many refineries of Indian oil, Bharat Petroleum. There are many. And largest refinery is, where is the largest refinery in India? Can anybody tell me? Largest oil refinery in India. सबसे बड़ी. That is in Jamnagar in Gujarat. Reliance refinery. Okay. So, and this crude oil, which we are getting from the ground below, and there are many sources in India, for your information, it is meeting, our own crude oil is meeting our requirement only 30%. 70% reporting. आपको पता है ना कि हमारा कच्चा तेल बाहर से आता है. जब आप पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ती हैं, गवर्नमेंट को बढ़ानी होती हैं, वो क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि बाहर से जो कच्चा तेल आ रहा है 70% हमारी रिक्वायरमेंट का, वो महंगा आता है. तब हमारे पेट्रोल डीजल की और एलपीजी की कीमत को बढ़ाना पड़ता है. और 70% जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसका खर्चा पता है कितना आता है? हमारा कंट्री 8 लाख करोड़ रुपया ज्यादा हर साल इसके ऊपर इंपोर्ट करने पे खर्चा करता है. तो हियर लाइज द पॉइंट कि अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल में या गवर्नमेंट के व्हीकल पे या पब्लिक की ट्रांसपोर्ट में अगर पेट्रोल डीजल सीएनजी घरों में खाना बनाने में जो एलपीजी यूज हो रही है, पीएनजी यूज है, उसमें कुछ कमी करेंगे, एफिशिएंट यूज करेंगे और नहीं होने देंगे, तो ओवरऑल इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी? हमारा कच्चा तेल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी. वी विल हैव टू इंपोर्ट लेस. तो जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो सकता है. और उसके उपरांत जब हम एफिशिएंट यूज करेंगे, बचत करेंगे, अपने व्हीकल्स की जो हर लीटर उसकी जो माइलेज है उसको मेंटेन रखेंगे, सर्विस ठीक टाइम पे करवाएंगे, हमारी ड्राइविंग की हैबिट्स अच्छी होंगी, हमारी रोड की कंडीशन अच्छी होंगी, हमारी व्हीकल्स की सर्विस और कंडीशन अपर मेंटेन करेंगे, तो इसका यूज भी कम होगा और एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा. एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ज्यादा नहीं पड़ेगी. ये भी बड़े फायदे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेचुरल गैस. नेचुरल गैस किस रूप में? पीएनजी मीन पाइप्ड नेचुरल गैस, सीएनजी मीन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलएनजी मीन लिक्विड नेचुरल गैस. यू नो, पीएनजी तो जैसे घरों में आती है, किसी इंडस्ट्री में जाती है. सीएन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो हाई प्रेशर पे होती है. व्हाई इट इज एट हाई प्रेशर? क्यों? आपकी गाड़ी में अगर कंप्रेस्ड रूप में नेचुरल गैस भरी होगी आपके टैंक में, तो भी देर तक चलेगी, और इससे भी ज्यादा देर तक चलेगी अगर वो लिक्विड फॉर्म में है. बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स होते हैं, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, उन ज्यादातर ये एलएनजी का यूज होता है, ताकि काफी लंबा टाइम सफर करने के उनको
रास्ते में कहीं इसकी कमी फील ना हो। वो लंबा तब चलती है क्योंकि लिक्विड में, हमारी एलपीजी भी सिलेंडर में है, वो भी लिक्विड फॉर्म में है, तो इट इज वेरी कॉमन। नेचुरल गैस इज आल्सो ए मेजर फीड स्टॉक फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। हमारे जितने खाद बनाने के कारखाने हैं, जैसे पानीपत में है, बठिंडा में है, या और भी कई जगह है, नेचुरल गैस जहां भी उनको अवेलेबल है, ये एक मेजर उनका रॉ मटेरियल है जिसको यूज करके वो फर्टिलाइजर बनाते हैं। देन कोयला, कोल इज अ मेजर हमारा एनर्जी का सोर्स है। हमारी कंट्री कोल इज आल्सो ए मेजर एनर्जी रिसोर्स। कोल का यूज कहां होता है? थर्मल पावर प्लांट। हमारी इलेक्ट्रिकल पावर कहां बनती है? थर्मल पावर प्लांट। एनी स्टूडेंट टेल मी, आपके फरीदाबाद में भी एक थर्मल प्लांट है, पावर जनरेट होती है, और पानीपत में भी है, बठिंडा में भी है, भी कई जगह पे है, छोटे बड़े। कैन एनी स्टूडेंट टेल मी हाउ द पावर इज इलेक्ट्रिकल पावर इज प्रोड्यूस्ड इन अ थर्मल पावर प्लांट? कैसे बनती है? एनी स्टूडेंट? Any student can tell me how the power is produced in a thermal plant? What, sir? एक थर्मल पावर प्लांट होता है ना, आप जानते हो ना? हाँ जी सर। पावर प्लांट जिसे बोलते हैं, तो हाँ पावर जी। प्लांट में इलेक्ट्रिकल पावर कैसे बनती है? कोई आइडिया? सर thermal power सर station is टर्बाइन्स को heat एंड energy is converted to the electricity. टर्बाइन मूव करके सर उससे टर्बाइन मूव कैसे करके? सर Sir, with heat the energy is evaporation converted to of electricity. with evaporation of water and all sir. तो वेपोरेशन, वाटर को वेपोरेट हो गया तो वो कहाँ होगा? टर्बाइन मूव हो जाएगी सर विद बड़ा। हीट एनर्जी जब प्रोड्यूस होगी सर तो उससे ओके, मैं बताता हूं अभी। बेसिकली है कि ऐसे कोयला जो जो थर्मल पावर प्लांट है, उसका नाम थर्मल क्यों पड़ा? थर्मल का मतलब होता है हीट। आपका थर्मोमीटर क्या करता है? थर्मोमीटर ये आपकी बॉडी टेम्परेचर, हीट, वो देखता है। थर्म मींस हीट। तो थर्मल प्लांट वो पावर प्लांट जो हीट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ये तो एक एक्सप्लोरेशन हो गया, पर उसका एक्चुअल में कैसे होती है वो जरूरी है। कोयला जो है, जो हमारी इंडिया के अंदर कई जगह से खानों से मिलता है, कोल माइंस। ओके, वी आर गेटिंग लॉट ऑफ कोल इज देयर इन इंडिया, जैसे असम साइड में, बंगाल साइड में, बिहार साइड में काफी कोयला है, और कोयला हमारी खानों में होता है। और ये कोयला जो है दैट इज बर्न इन ए फ्लेयर। ये आपने नहीं बताया कि एक स्टील के बॉयलर में कोयला जलता है और वाटर को वो हीट दे के, कोयले की हीटने से हीट बनती है, वो पानी को मिलती है, तो पानी कन्वर्ट होता है सेपरेट होके स्टीम में, उसकी स्टीम बनती है। तो पावर प्लांट में जो बॉयलर लगे हैं वो हाई प्रेशर के और हाई टेम्परेचर की स्टीम बनाते हैं, और वो जाती है हाई प्रेशर की स्टीम टरबाइन में। उसको बोल स्टीम टरबाइन, एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है। वो स्टीम टरबाइन के अंदर होता है कि हीट एनर्जी ऑफ द स्टीम इज कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी। किस रूप में? स्टीम टरबाइन की जो शाफ्ट है वो उस फोर्स से घूमती है, जोर से स्टीम एंटर होगी। वो थर्मल पावर प्लांट के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो मैकेनिकल पावर बन गई। और ये जो स्टीम टरबाइन है दैट इज कपल्ड विद एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विच इज कॉल्ड ऑल्टरनेटर। जो बिजली का इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट है, वो डायरेक्ट कपलिंग है। जैसे किसी मोटर और पानी के पंप के बीच में कपलिंग होती है, जिस स्पीड से मोटर घूमती है वो पंप को भी घुमा देता है। इसी तरीके से एक थर्मल पावर प्लांट में स्टीम टरबाइन जो है वो एक ऑल्टरनेटर के साथ कपल्ड होती है, और उसके बीच में एक गियर बॉक्स होता है। गियर बॉक्स का मतलब है कि आपने कितनी स्पीड पे ऑल्टरनेटर घुमाना है, घुमाने की, ताकि पावर की जो जनरेशन है, पावर जो ऑल्टरनेटर प्रोड्यूस करेगा
वो प्रॉपर वोल्टेज की और प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की बनाए। इलेक्ट्रिकल का मामला है, आपकी जस्ट सिंपल समझने के लिए कि वो मैकेनिकल पावर स्टीम टरबाइन ऑल्टरनेटर को जाती है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, और वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैकेनिकल एनर्जी को लेके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एक स्मॉल एक्सप्लेनेशन है थर्मल पावर प्लांट में पावर कैसे। एक ऑल्टरनेटर जो है वो इलेक्ट्रिकल मोटर का एक उल्ट, इलेक्ट्रिकल मोटर भी इलेक्ट्रिकल मशीनरी है और ऑल्टरनेटर भी इलेक्ट्रिकल मशीन है। तो इलेक्ट्रिकल जो मोटर होती है वो काम दोनों का प्रिंसिपल सेम है, दोनों में वाइंडिंग्स होती है, रोटर भी होता है, स्टेटर भी होता है, और इलेक्ट्रिक और में इलेक्ट्रिकल पावर लगती है और उसके बदले में वो मैकेनिकल पावर बनाती है। आप बिजली का स्विच ऑन करते हो मोटर का तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल पावर जाती है, उसका एम्पियर शो होता है, दैट में पावर लगनी शुरू हो गई, और उससे क्या बनता है, मोटर की शाफ्ट घूमती है, मैकेनिकल पावर। उसको आप किसी भी मशीन को चलाने के लिए यूज कर सकते हो, वो आप डिपेंड करता है कि कहाँ यूज करना है। पर ऑल्टरनेटर जो थर्मल पावर प्लांट का ऑल्टरनेटर है, ये स्टीम टरबाइन की मैकेनिकल पावर को लेके इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, अब जहां पे एक जो एनर्जी कंजर्वेशन का जो मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इसके अंदर 80% इलेक्ट्रिकल पावर जो बन रही है वो थर्मल पावर प्लांट में बनती है जिनमें कोयला लगता है, जिनमें कोयला लगता है। 20% दूसरी पावर है जैसे कि हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, ये है। 80% अगर थर्मल पावर प्लांट है तो कोयले की रिक्वायरमेंट भी काफी है, क्योंकि ये बिजली तो हमें चाहिए। तो जितना कोयला ज्यादा लगेगा पोल्यूशन बढ़ेगा, और पोल्यूशन बढ़ेगा तो और सारी प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया पहले वो ज्यादा हो जाएंगी। इसलिए जितना हम इलेक्ट्रिकल पावर का, चाहे इंडस्ट्रीज हैं, चाहे ऑफिसेज हैं, चाहे इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे में है, जितना पावर की बचत करेंगे, थर्मल पावर प्लांट जो लगे हैं उनमें पावर की डिमांड कम हो जाएगी। पावर की डिमांड कम होगी तो उनमें कोयला कम लगेगा, कोयला कम लगेगा तो पोल्यूशन कम होगा। तो ये फायदे हैं। यहां पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, इवन कोयला भी अच्छी क्वालिटी कोयला वो हम बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया से। स्टील प्लांट में रिक्वायरमेंट होता है, कई इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के अंदर कई फर्नेसेस होती हैं, भट्टियां, जैसे मेटल को मेल्ट करने के, फोर्जिंग के लिए, हीट ट्रीटमेंट के लिए कोई फर्नेसेस में यूज होता है, गैस भी यूज होती है। ठीक है, तो इसलिए कोयला जो हम बाहर लगाते हैं उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हमारी पावर की कंजप्शन नहीं आती है। तो ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट। पेट्रोल जो है एक मेजर, और डीजल, ये ट्रांसपोर्ट का एक मेजर कंजप्शन होती है, इंडस्ट्री में भी होती है, रेलवे में डीजल की काफी यूज होता है। रेलवे, हालांकि बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स हैं वो इलेक्ट्रिकल हो गए हैं, पर कई जगह पे डीजल अभी भी चलता है। तो मेजर कंजम्पशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पेट्रोल और डीजल का। तो इसलिए ये पेट्रोल डीजल की बचत करने से आपका कच्चा तेल के ऊपर, क्रूड ऑयल की इंपोर्ट के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रिकल पावर, हाइड्रो पावर, तो ये सारे एनर्जी के सोर्स। नाउ माय स्लाइड इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इज इट ओके? आप सामने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की स्लाइड है ना? यस सर। मैं इसलिए बार बार पूछता हूं क्योंकि कई बार होता है कि स्लाइड मूव नहीं, कई पार्टिसिपेंट बोलते हैं स्लाइड तो मूव नहीं कर रही। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ओशियनिक एनर्जी, इसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है हमारे इंडिया में। साउथ में तामिलनाडु में IIT मद्रास है और एक गवर्नमेंट की रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसके भी रिसर्च कर रहे हैं कि हम समुद्र की जो लहरों की एनर्जी, हाई टाइड्स, लो टाइड्स होती है, उनकी एनर्जी को, जो एनर्जी है, उसको हम कैसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको यूजफुल में कन्वर्ट कर सके, इसके ऊपर भी काम चल रहा है, रिसर्च हो रही है। कुछ अफोर्डेबल बनाना है, इजीली कन्वर्ट हो सके, वो चीज के ऊपर रिसर्च चलती है। जो थर्मल एनर्जी, वो क्या एनर्जी है? जो जमीन के अंदर गर्मी है, वो किस रूप में है? जैसे जमीन के अंदर कई जगह पे आपने देखा होगा कि गर्म पानी के जो स्प्रिंग्स निकलते हैं, चश्मे जिसे बोलते हैं, वो हीट एनर्जी है।
मुझे आपने भी सुना होगा हिमाचल के अंदर एक जगह है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक फेमस गुरुद्वारा भी है। वहां पर इतना गर्म जमीन से सर निकलता है, मणिकरण। हिली एरिया है। हाँ, मणिकरण, यस। तो उस जगह पे इतना गर्म पानी निकलता है, लोग कहते हैं कि वहां पर एक आप कपड़े के अंदर चावल डाल उसके अंदर थोड़ी देर के लिए रखो तो चावल तैयार हो जाते हैं। तो वो जो एनर्जी है तो वो भी हीट एनर्जी है। तो उस एनर्जी को यूजफुल यूज कर सकें, लाइक बनाना, वो एक काफी डेवलपमेंट का काम है, रिसर्च का काम है। तो ये एनर्जी के सोर्सेज है जो अवेलेबल है, मेन है। नीचे मैंने बताया इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये है आपके इवन होटल के लिए भी है। इलेक्ट्रिकल पावर आपके इंडस्ट्री में लगती है, होटल में भी लगेगी। स्टीम का रिक्वायरमेंट, स्टीम कई इंडस्ट्री यूज होती है। आपके मिल्क प्लांट है, शुगर मिल्स हैं, राइस प्लांट है, और बहुत सारी फूड इंडस्ट्रीज है, उनमें स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है। उनको स्टीम के लिए बॉयलर लगाने होते हैं, बॉयलर लगे होते हैं। इवन आप किसी होटल में अगर जाओगे तो आपको देखा होगा वहां पर भी स्टीम का रिक्वायरमेंट है। आप बताइए होटल में स्टीम का रिक्वायरमेंट कहाँ होता है? कैन यू टेल मी? स्टीम का रिक्वायरमेंट किसी होटल में कहाँ होता है? कहाँ कहाँ होता है? सर सोनार है जहाँ स्टीम बात सोनार लेते क्या? हैं। अच्छा, वो हो गया, ठीक है, ओके फाइन। सर लॉन्ड्री। गुड, वेरी, यही पॉइंट था। ये लॉन्ड्री में भी होता है, लॉन्ड्री में भी होता है। और आपका जो आपने कहा कि वो बाथ लेना होता है, वो भी होता है, या और भी कहीं बॉयलर पड़ते हैं। हालांकि बॉयलर उनके छोटे होते हैं, तकरीबन होटल में बॉयलर जो कोयले वाले कम ही होते हैं। तो होटल के एनवायरनमेंट में पोल्यूशन, तो जो वो बॉयलर वो छोटे बॉयलर है, और उनके में ज्यादातर वो गैस के ऊपर या डीजल। ठीक है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल पावर उनका पावर और बाहर बिजली बोर्ड की पावर लेते हैं, पर ऐसे में पावर लाइक शुगर मिल है। शुगर मिल में गन्ने का जो रस है, उससे शुगर गन्ने रस को उड़ाना है, उसको वेट करके परे करना है। तो कैसे होगा? स्टीम की से। तो स्टीम की जो स्टीम का रिक्वायरमेंट है, तो उनके पास ऐसे बॉयलर होते हैं जो हाई प्रेशर के बॉयलर है, और उनमें फ्यूल क्या लगता है? कोयला या गैस नहीं लगती। बॉयलर में कैन एनीबॉडी टेल मी? Sir, you are not audible. उनके बॉयलर नहीं। Sir, your voice is हेलो, breaking. कोई बताए मुझे? आवाज ब्रेक हो रही है? यस सर। Now it's better. अब ठीक है, बेटर, ओके। तो एक शुगर प्लांट में उन बॉयलर में जो स्टीम बनती है वो बगास में बनती है। गन्ने का रस निकलने के बाद जो बच जाता है उसको ड्राई करके बॉयलर में जलाते हैं। इस तरह राइस प्लांट में, चावल के मिल में जो चावल का छिलका होता है उसको जलाते हैं तो बनते हैं, वो उनकी कैप्टिव पावर प्लांट। और कई इंडस्ट्री वाले जिनके पास ये रॉ मटेरियल नहीं होता बॉयलर के लिए, उनके कैप्टिव पावर प्लांट या तो कोयले पे होंगे या किसी और। तो उनको कैप्टिव पावर प्लांट इसलिए बनाने पड़ते हैं कि बिजली बोर्ड की पावर के ऊपर उनको डिपेंड रहने से कभी प्रॉब्लम भी आ सकती है। जैसे बिजली बोर्ड की पावर गई, उनकी सारी जो प्रोडक्शन जो है को प्रोसेस के अंदर मटेरियल जा रहा है, कोई फूड इंडस्ट्री है, तो खराब ना हो जाए, तो उनको ऐसा पावर बैकअप सिस्टम रखना भी पड़ता है जनरेटर के रूप में, डीजी सेट्स।
तो स्टीम का भी हो गया। कंप्रेस्ड एयर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरोप्लेन में भी कई बार कंप्रेसर लगे होते हैं, एयर कंप्रेसर कंप्रेस्ड एयर के लिए। उससे क्या होता है, हवा प्रेशर वाली हवा मिलती है, किसी फ्लो रेट में मिलती है। उससे क्या होता है, उनके न्यूमेटिक सिस्टम चलते हैं, न्यूमेटिक कंट्रोल। जैसे आपकी लॉन्ड्री के अंदर अगर लॉन्ड्री ऑटोमेटिक है तो स्टीम का यूज ऑटोमेटिक हो, वाल बंद हो जाए, वाल कंट्रोल हो जाए, टेम्परेचर कितना सेट करना है वो हो जाए। ये उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट की काम करना होता है, इंस्ट्रूमेंट आमतौर पे वो कंप्रेस एयर पे चलते हैं, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट एयर। तो कई इंडस्ट्री में कंप्रेस एयर का यूज प्रोडक्शन के लिए भी होता है। जैसे कि कई इंडस्ट्री के अंदर न्यूमेटिक प्रेसेस होती हैं, ड्रिल्स होते हैं, न्यूमेटिक ग्राइंडर्स होते हैं। न्यूमेटिक का मतलब है जो कंप्रेस एयर से चलने वाली चीज को न्यूमेटिक बोलते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें जो है आपके काम के लिए। अब आता है कि व्हाट इज द सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का यूज जो है वो मैन्युफैक्चर में भी है, नेचुरल रिसोर्स यूज में भी है, वेस्ट मैनेजमेंट में भी है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, वाटर मैनेजमेंट। ये सस्टेनेबल का मतलब क्या मैंने बताया था आपको कि सस्टेनेबल का मतलब है कि आप जो काम काज है या काम करने का तरीका है, प्रोडक्शन करने का तरीका है, सर्विस सप्लाई का तरीका है, ऐसा होना चाहिए कि इट कैन गो ऑन लॉन्ग टाइम। सस्टेनेबली उसकी जो यूज है, उसकी सप्लाई है होती रहे फ्यूचर में भी, कभी उसमें कोई डिस्ट्रप्शन ना हो, बाधा ना पड़े। ये इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। अभी एनर्जी कंजर्वेशन की एफिशिएंसी के एग्जांपल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज होना, आप जानते हैं। कार पूलिंग, आप पूलिंग करो, मतलब चार एक ही कार में आ रहे हैं, चार कारें अलग रोड पे ना आए तो काफी सेविंग है, तो पोल्यूशन का भी कम होगा। पर्सनल व्हीकल का यूज करना, ज्यादा साइकिल वगैरह का यूज करना। जापान में मोस्टली लोग अपने ऑफिस में आने जाने के लिए साइकिल का यूज करते हैं। दे प्रेफर साइकिल्स। वाई? दे फील कि साइकिल का यूज करने से सेहत भी ठीक रहती है और इन एनर्जी कंजर्वेशन भी हो सकती है और पोल्यूशन का लेवल भी कम होता है। ठीक है। फिर डे लाइट का यूज करना, आप घर के अंदर हो, कहीं ऑफिस में हो, अगर बाहर की डे लाइट काफी है तो उससे भी आपने कैसे उसको अपने वर्क एरिया में तक ले जाना है वो आपको देखना। आपने देखा होगा कि आपके फरीदाबाद में भी कई इंडस्ट्रीज होंगी, गुड़गांव साइड में कई इंडस्ट्री होगी, भिवाड़ी साइड में होगी, मानेसर साइड में होगी। बहुत सारी जो नई है उनकी बड़ी बड़ी वर्कशॉप के अंदर ऊपर छत के ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट लगी है। उन ट्रांसपेरेंट शीट्स में से नेचुरल लाइट जो धूप है वो प्रॉपर वे में अंदर आती है और वर्क एरिया में उनको भी लाइट दिन के समय नहीं जलानी पड़ती। इज द यूज ऑफ डे लाइट। उससे भी काफी पावर की बचत होती है लाइट में। ठीक है। फिर मिनिमाइज यूज ऑफ एयर कंडीशनिंग रूम हीटर। अगर आप अवॉइड करते हो, चाहे सर्दी है या गर्मी है, एयर कंडीशनिंग को अवॉइड कर सकते हो तो वो भी एक अच्छी चीज है करने के लिए। एनर्जी efficiency का example. Energy efficiency is about reducing the energy intensity of a process or activity so that less energy is required to produce the same amount of products or service. This can be achieved by introducing more efficient technologies, equipment or processes. ये सारी चीजें एक बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपको समझने के लिए। आपकी मैं यहां पे आपको पूछना चाहता हूं, आपके पर्सनल में एक क्वेश्चन है मेरा। आपके पास बाइक है, किसी के पास कार है, उसमें आपकी डीजल या पेट्रोल की या सीएनजी की बचत करने के लिए कोई पॉइंट है आपके पास? कैन यू रिकमेंड टू समबडी और कैन यू से कि ये चीज मैं करूं तो मेरी काफी माइलेज बढ़ सकती है? कैन एनीबडी टेल मी? नंबर 1। Sir, regular servicing. 2 पॉइंट है, Regular servicing. बोलिए। रेगुलर, वेरी गुड। रेगुलर सर्विस करते रहेंगे तो आपकी जो एवरेज है कम से कम जो
शुरू में थी, नए लेने के टाइम पे थी, उसके आसपास आ जाएगी और सर्विस आपको ठीक टाइम पे और ठीक तरीके से करानी है। ऐसा नहीं है कि सर्विस के लिए आप ज्यादा खर्चा नहीं करना, बस थोड़ा सा साफ सफाई कर दो और मेरे को गाड़ी दे दो वापस, वो नहीं। उसको एक पूरी तरीके से छूट दे दो कि मेरी पूरी इसकी सर्विस ठीक तरीके से होनी चाहिए, नो मैटर कितना खर्चा है। दैट। और दूसरा यस, दूसरा पॉइंट क्या है? सर एसी कम यूज करेंगे तो भी माइलेज बढ़ेगी। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वो है ही है कि आपका पर अगर आप अवॉइड करते हो कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी कौन सी पड़ रही है, थोड़ी हम खिड़की वगैरह खोल लेते हैं और बाहर का हवा आ रही है और फ्रेश हवा मिली, तो वो एक करने लायक चीज है, वो भी एक फर्क पड़ता है। यस, वेरी गुड। और ये घर में भी है, ऑफिस में भी है, एसी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस ना हो तो आपका अच्छा रहेगा। हाँ जी, और बोलिए। यस, एनीथिंग मोर? नो? अननेसेसरी ऑन नहीं रखो इंजन, जैसे लाइट्स वगैरह वेरी पे गुड, कई आइडलिंग, लोग। इसको बोलते हैं आइडलिंग। सर एक इकोनॉमी स्पीड पे चलना चाहिए, रेगुलर बार बार गियर शिफ्ट और क्लच नहीं दबाना चाहिए। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। तो आपका पॉइंट, पहला तो पॉइंट था आपने जो बताया, वो बताया कि आपका, जस्ट ए मिनट, हाँ हाँ, तो आपने एक तो पॉइंट बताया कि एयर कंडीशनिंग का कम से कम यूज हो, और दूसरा पॉइंट बताया कि आपकी स्पीड। वेरी गुड। हमारा ये एक स्टडी है, एक से पता चला कि अगर आप किसी हाईवे पे जा रहे हो, यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, रुकावट नहीं है, फ्री फ्लो हो सकता गाड़ी का, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू कैन हैव योर स्पीड हाई, टॉप गियर पे जा सकते हो, तो भी आपको अच्छी एवरेज मिलेगी, बेटर है। ठीक है? पर अगर आप किसी सिटी में जा रहे हो, दिल्ली में जा रहे हो, बॉम्बे में जा रहे हो, फरीदाबाद की ऐसी रोड पे जा रहे हो जहां पर काफी रश है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो देर आपने जो बोला कि स्पीड जो है वो एक कंट्रोल में होती है, वो ये है कि अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के आसपास आपकी गाड़ी चलती है तो ओवरऑल एवरेज ठीक। इसका कारण क्या है? वही एक हाईवे के हाई स्पीड से एवरेज ठीक आती है, और एक सिटी के अंदर जहां पर काफी रोड पे ट्रैफिक है, वहां पर आपकी 50 किलोमीटर के आसपास स्पीड रखने से एवरेज ठीक आएगी। रीजन क्या है? सर बार बार क्लच दबाने से बार बार हाँ, एक्स्ट्रा पेट्रोल यूज होता है। एक तो बार बार क्लच लगाना जो है या करना, और ब्रेक लगाना जो है, ब्रेक लगना, उससे काफी एनर्जी वेस्ट होती है। सपोजिंग आप अपने इंस्टीट्यूट से निकले और आपके इंस्टीट्यूट से आप घर जा रहे हो, और इंस्टीट्यूट से निकल के आपको पता है कि 2 किलोमीटर के ऊपर एक रेड लाइट रोड पे आती है, ठीक है, आप अपने बाइक से जा रहे हो, आप 80-90 किलोमीटर की स्पीड से जाके रेड लाइट आपको मिली, आप ब्रेक लगाओगे तो आपको रुकना पड़ेगा, ब्रेक लगाओगे। पर अगर आपको पता है कि 2 किलोमीटर के ऊपर एक रेड है, आप वहां पर उस रेड लाइट तक पहुंचने के टाइम पहले से स्पीड को कम करके आपकी स्पीड मान लो 15 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की हो गई और रेड लाइट मिली, तो आपने ब्रेक लगाई, पावर का वेस्टेज इस केस में कम होगा, पहले वाले केस में ज्यादा होगा। समस्या नहीं? आपको समझ आ गई? हेलो, यस सर। बताइए। हाँ, मतलब आपकी हाई स्पीड पे ब्रेक ब्रेक तो आपको लगाना ही है, क्योंकि रेड लाइट है आपका, नहीं तो चलान हो जाएगा।
पर हाई स्पीड पे ब्रेक लगाना और कम स्पीड पे ब्रेक लगाने में फर्क ये है कि एनर्जी का हाई स्पीड पे क्या होता है। और क्या करना चाहिए? ओवरलोड नहीं गाड़ी करना में चाहिए। ओवरलोड मतलब नहीं, अब ओवरलोड होगा तो इंजन को तो ताकत ज्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी ना आपको आगे ले जाने के लिए, वो तो है ही। और टायर में हवा का प्रेशर का कोई संबंध है? इज देयर एनी कनेक्शन विद द यस सर है। टायर? यस सर, हवा क्या सही रहनी चाहिए सर टायरों में। सर कम हवा होगी तो टायर कम से फ्लैट होगा, जिससे नुकसान है? ज्यादा फ्रिक्शन। वेरी गुड। तो टायर में हवा प्रेशर कम होने से टायर फ्लैट होगा, कॉन्टैक्ट एरिया विद द रोड वो ज्यादा हो जाएगा। यू नो, आपके गाड़ी के टायर के बॉटम में और रोड के बीच में एक फोर्स के फ्रिक्शन, और दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दी मोशन डायरेक्शन। आपकी जो गति की डायरेक्शन है उसके अपोजिट होती है हमेशा। तो जब फ्लैट होता है, कॉन्टैक्ट एरिया रोड के साथ बढ़ जाता है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो जाती है और इंजन को ज्यादा ताकत बनानी पड़ती है। और ज्यादा इंजन ताकत कब बनाएगा? जब ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा। पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम करेगा, डीजल ज्यादा कंज्यूम करेगा, सीएनजी ज्यादा कंज्यूम करेगा। ठीक है, इसलिए ये छोटी छोटी बातों को बड़ा ध्यान रखने की बातें हैं। और क्या है? ज्यादा यूज ऑफ CFL और LED। अभी हम कहते हैं कि LED का ज्यादा यूज होना चाहिए। आगे चलते हैं। वाई एनर्जी कंजर्वेशन। अभी पॉइंट यह है कि एनर्जी कंजर्वेशन, अगर आप किसी होटल में आपको जॉब मिलती है, बिकॉज यू आर फ्रॉम होटल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, तो आपका होटल में जाके जो भी आप स्टेप लेते हो उसका फायदा किसको मिलता है? सर हमें। उसको है, आप उसका फायदा किसको मिलता है? आपने होटल में जाके पावर की बचत की, लॉन्ड्री में की, लाइटिंग में की, LPG सर की होटल बचत सर की। होटल को फायदा मिलता है सर। बिल्कुल, आपके उस होटल की मैनेजमेंट को फायदा मिला, उसका सर क्रेडिट क्योंकि सर आपको मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी कम जलेगी तो सर बिल भी कम आएगा सर। कम आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैनेजमेंट को लगेगा कि ये हमारा जो एम्प्लॉई है, ये स्टेप लेने से या इसकी एफर्ट से हमारा बिल कम आना होगा, तो आप इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। पर आप अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहे, आपकी ये जॉब है, और उस जॉब के करने से आपके होटल एनर्जी का बिल कम हो जाएगा। जब हम एनर्जी की बात करते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर भी आ जाती है, PNG या LPG भी आ जाती है, या जनरेटर में लगने वाला भी आ जाता है। ठीक है, तो होटल का जब बिल कम आएगा तो को क्या फायदा होगा? मैनेजमेंट को प्रॉफिट ज्यादा होगा। मैनेजमेंट को प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मैनेजमेंट जो है वो सर्विस की कॉस्ट कम कर सकता है। किसी होटल में रहने के लिए एक दिन का खर्चा मान लो 5000 है और एक होटल में 2000 है। फर्क क्या है कि 5000 वाले का खर्चा ज्यादा होगा, 2000 ये का सर खर्चा कम आता इलेक्ट्रिसिटी होगा। का हर चीज का सर। ठीक है ना? तो आपके जिस होटल में ये चीजें कम हो जाएंगी, बिलिंग कम होगी, उस होटल के लिए एक एक फैसिलिटी मिल गई कि वो आप जो सर्विस प्रोविजन की जो पर डे या जो भी है, इवन फूड है, फूड का है कि कितना उनको एक डिनर का, एक लंच का कितना पैसे लेना, वो कम कर सकते हैं क्योंकि उनके पास मार्जिन है। और सेकंड ये है कि कंपटीशन, फरीदाबाद में मान लिया या आप जहां से भी हो, फरीदाबाद में अगर 3 होटल हैं, एक कस्टमर बाहर से बॉम्बे से आ रहा है, फरीदाबाद में किसी इंडस्ट्री में उसको काम है और उसको 3 दिन का काम है और 3 दिन उसने फरीदाबाद में रहना है, तो वो देखेगा कि कौन से होटल में, पहली बात तो यह है कि वो ये सोचेगा कि किस होटल में टैरिफ कम है, पर डे रहने का कम है। उसको ये भी देखना है कि मेरी रेपुटेशन क्या है। वो किसी से पूछे कि या 3 होटल में से कौन सा होटल बेस्ट है, तो कोई कहेगा कि ये होटल बहुत अच्छा है, वहां खाना बहुत अच्छा है, वहां सर्विस बहुत अच्छी है, वहां का एनवायरमेंट बड़ा अच्छा है, वो भी देखेगा। ठीक है ना? इसलिए ये चीज अगर किसी कस्टमर को आपने होटल को अट्रैक्ट करना है तो ये सब चीजों को, क्वालिटी को
कास्ट को और सर्विस डिलीवरी को, फूड क्वालिटी को, ये सब चीजों को देखना है, तभी वो होटल जो है वो आगे रहेगा। तो इसके लिए भी ये एक एरिया जो है एनर्जी कंजर्वेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि वाई एनर्जी कंजर्वेशन, इंपोर्ट बिल जो मैं आपको बताया ना, क्रूड ऑयल का बिल कम हो सकता है, जो 8 लाख करोड़ रुपया से भी ज्यादा हर साल होता है, वो भी कम हो सकता है। फिर एनवायरमेंट का पोल्यूशन कम हो सकता है, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। और एनवायरमेंट पोल्यूशन कम होने से आपका हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कम बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसका जो खर्चा होता है हेल्थ केयर के ऊपर, हॉस्पिटल्स है, मेडिसिन है, दवाइयां बनाने वाली कंपनी है, डॉक्टर्स है, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह है, तो ये सारी चीजें इंटरप्रोडक्ट, उसके ऊपर खर्चा कम हो सकता है अगर पोल्यूशन कम होगा। आपको यहाँ पर बताना होगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे फिगर्स हैं कि अभी दुनिया में लोग ज्यादा पोल्यूशन के कारण ज्यादा मरते हैं, दूसरे कारण से कम है। कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, इंडस्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, वो तो कम है, पर पोल्यूशन जो कारण बनता है वो ज्यादा है। फिर उसके उपरांत सबसे ज्यादा फायदा है वो है ग्रीन हाउस गैसेस का कम बनना, ग्लोबल वार्मिंग होना, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से कम होना। ये ग्रीन हाउस कैसे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, ये मैं आपको आके बताऊंगा। तक आपने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना, नहीं तो बाद में एंड में सोचेंगे। आगे बढ़े भाई? जी सर, कंटिन्यू। ओ फाइन। Hotel management graduates have the important role to play. Hotel management graduates can be important role to play. They can do their work in achieving the United Nations Sustainable Goals. हमारे जो यूनाइटेड नेशन के नाम तो आपने सुना ही होगा, उन्होंने कोई 17 के गोल बनाए हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज को इंप्लीमेंट करने के लिए उनका प्रपोजल है, सुझाव है कि इसके ऊपर काम करना चाहिए। उनमें से अफोर्डेबल एनर्जी, एनवायरमेंट, सस्टेनेबल क्लाइमेट, पॉवर्टी को, गरीबी को कम करना, ये भी है। और ये सारे जो सस्टेनेबल गोल्स हैं ये इंटरकनेक्टेड है, और उन गोल को अचीव करने के लिए हमारे जो टेक्निकल पीपल हैं, मैनेजमेंट पीपल हो या टेक्निकल पीपल हो, इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, सिविल, इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर साइंस, इवन यू पीपल, होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट, तो इनकी कंट्रीब्यूशन से ये पॉसिबल है, इसलिए आपकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आपको सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, प्रोसेस, मटीरियल सप्लाई, ग्रीन बिल्डिंग, होटल, कई होटल हैं, मैं अकली कई होटल हैं, उन्होंने इस चीज के ऊपर प्राइज जीते हैं कि उनका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो ग्रीन बिल्डिंग है। ग्रीन बिल्डिंग वो मिनिमम यूज कर बाहर वाली बिजली को, बाहर वाली एनर्जी को, वो सेल्फ सफिशिएंट है। पानी केस में उनका जीरो वेस्ट है, पानी, जितना भी पानी उनका निकलता है वेस्ट होता है, उनको गार्डनिंग वगैरह में ट्रीट करके गार्डनिंग में यूज करते हैं, या बाथरूम की फ्लश में यूज करते हैं, ऐसी भी चीजें हैं। तो ये सारी चीजों का करना पॉसिबल कब है, जब हम लोग इंजीनियर या आप लोग जो है इसमें कंट्रीब्यूट करें। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर काफी डिपेंडेंट है। एक चीज मैं आपको थोड़ा और एक ऐड करना चाहता हूं आपके नॉलेज के लिए, हाइड्रोजन एक बड़ी लेटेस्ट एडिशन है एज ए क्लीन फ्यूल। हमारे कोयले से जो नेचुरल गैस है वो बेटर है, कोयले से पोल्यूशन ज्यादा होता है, नेचुरल गैस से पोल्यूशन कम होता है। पोल्यूशन होता है, ये बस समझना सीएनजी से पोल्यूशन नहीं होता, खाली डीजल और पेट्रोल से होता है, नो, सीएनजी से भी होता है। सीएनजी आफ्टर इज ए गैस, जब सीएनजी जलती है गाड़ी में, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और दूसरी गैसेस बनती हैं जो एनवायरनमेंट में बढ़ती हैं, तो पोल्यूशन का कारण बनती है। सर सीएनजी कार में तभी तो सर पैसेंजर को बाहर उतार देते हैं सर, सीएनजी भरते समय। नहीं, वो सेफ्टी है। दूसरी बात है कि सीएनजी भरते समय गाड़ी को वहां पेट्रोल सीएनजी स्टेशन में कोई सीएनजी लीक थोड़ी होती है। वो ये है कि कभी कभी कोई
मान लो कि कोई अपना मोबाइल चालू कर दिया, स्पार्क हुई, किसी ने बीड़ी सिगरेट के पास में आग लग गई, तो या गाड़ी में अगर मान लिया सीएन बढ़ते बढ़ते गाड़ी में आग लग जाती है, तो कम से कम लोग अंदर बैठे होंगे तो ज्यादा रहा है, लोग बाहर होंगे तो खतरा कम हो जाएगा। और आमतौर पे आग लगने का खतरा जब भर रही होती है गैस तो ज्यादा होता है। हालांकि कभी ऐसा इंसिडेंट सुनने में तो नहीं आया है, सेफ्टी के लिए, वो उसके लिए पोल्यूशन का कारण नहीं है, as a precaution. ओके, प्रिकॉशन, एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, ओके। एंड जो हाइड्रोजन है ये कैसे बनती है? पानी से। व्हाट इज वाटर? H2O, H2 हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन। पानी के अंदर बिजली पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस अलग होती है, ऑक्सीजन अलग होती है। और हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है। जब हाइड्रोजन किसी गाड़ी में यूज कर रहे हैं या किसी इंडस्ट्री में हीटिंग के लिए बॉयलर में यूज हो रहा है, फर्नेस में यूज हो रहा है, हाइड्रोजन जलेगी तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन जलेगी तो क्या बनेगा बताइए सर क्या? हाइड्रोजन किसी बॉयलर में, किसी फर्नेस में, किसी ओवन में जलेगी तो क्या बनेगा? सर हाइड्रोजन ऑक्साइड। H2O। हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या होता है? वाटर। H2O क्या है? वो हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। आपको ये नहीं पता? केमिस्ट्री में पढ़ा नहीं? हाइड्रोजन का ऑक्सीजन जो है वो H2O है। यस सर। तो हाइड्रोजन से जलने से हमें वाटर मिलता है, नो पोल्यूशन। इसलिए अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी कंट्री का इसके ऊपर ध्यान जा रहा है कि कहीं हमें अभी हाइड्रोजन के लिए ही जाना है। अगर हमें क्लाइमेट चेंज को कम करना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, पोल्यूशन को कम करना है, तो हाइड्रोजन एक हमारा मेजर फ्यूल होना चाहिए फ्यूचर में। इंडिया का भी काफी इसके ऊपर जोर है। पर हाइड्रोजन दो तरीके से बनती है। मेथड एक ही है, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। पर अगर वो पानी हाइड्रोजन बनाने के लिए पानी के अंदर वो बिजली पास करते हैं जो ये से बनती है या डीजल से बनती है, जैसे जनरेटर डीजी सेट में बनती है, तो उस हाइड्रोजन को बोलते हैं ब्राउन हाइड्रोजन, क्योंकि उसके लिए बनाने के लिए जो पावर यूज हुई वो पोल्यूशन वाली थी। अगर हाइड्रोजन को बनाने के लिए उस पावर को यूज करेंगे वाटर में डालने के लिए जो सोलर एनर्जी से आई है, विंड एनर्जी से आई है, उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो अभी हर एक कंट्री का मोर थ्रस्ट है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन बनाएं। और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी के सिस्टम ज्यादा लगाने पड़ेंगे, सोलर पैनल, सोलर एनर्जी सिस्टम ज्यादा लगाना पड़ेगा, विंड एनर्जी के विंड मिल ज्यादा लगानी पड़ेंगी। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फ्यूचर का स्टेप है जो आपके जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। फिर एक और थर्ड पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं, एनर्जी सोर्स। तो वो ऐसा है कि जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये मौसम के साथ डिपेंड करती है। अगर आपकी बाहर धूप निकली है तो आपकी सोलर एनर्जी ज्यादा बन सकती है, बारिश का मौसम है तो सोलर एनर्जी कम बनेगी। इस तरह से हवा चल रही है तो विंड एनर्जी ज्यादा बनेगी, हवा कम होगी, स्पीड कम होगी तो विंड एनर्जी भी कम बनेगी। तो ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अगर सिस्टम हमारे लगे हुए हैं और सिस्टम विंड मिल लगे हैं या सोलर पैनल लगे हैं और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, पर एनर्जी की डिमांड फ्लक्चुएट होती है। एनर्जी की डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट करती है। कभी कोई इंडस्ट्री बंद हो गई या इंडस्ट्री डे ऑफ का डे है तो पावर की रिक्वायरमेंट कम होगी, और हमने सोलर एनर्जी के लगा रखे हैं, विंड एनर्जी लगा रही है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो बनेगी, हम ये नहीं करेंगे कि सोलर एनर्जी के बिजली बनाना बंद कर देंगे, विंड एनर्जी विंड बनाने करने के उपाय नहीं है, हम बनाते रहेंगे। और जितनी वो पावर बनेगी उसको हम स्टोर करके रख लेंगे। फ्यूचर में जब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो कम से कम जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको यूज करें। और किस रूप में होती है वो? बैटरी स्टोरेज। लार्ज साइज की बैटरी में जो एक्स्ट्रा एनर्जी जहां भी अवेलेबल है उसको हम बैटरी रूप में स्टोरेज कर लेते हैं। उन बैटरी से इन्वर्टर लगा के हम एनर्जी को यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करके डिमांड ज्यादा होने के टाइम पे दे सकते हैं। दूसरा है पंप स्टोरेज। पंप स्टोरेज क्या है?
जस्ट लाइक हाइड्रो डैम नहीं होते, वो ऐसा कि एक्स्ट्रा एनर्जी है हमारे पास, यूज डिमांड कम है, आप उस पावर को ऐसे पंप चला के पानी को स्टोर करो एट ए हाइट, पानी को एक हाइट पे स्टोर कर लो और उस हाइट पे के जो पानी को उस समय यूज करो। ये एक डैम की बिजली बनाने के रूप में उनमें हाइड्रोलिक टर्बाइन्स होती हैं, उसको यूज करके करो जब डिमांड होगी। तीसरा स्टोरेज है कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज, कि आप प्रेशर की कंप्रेसर बना के एक्स्ट्रा पावर है, एयर कंप्रेसर चला के कंप्रेसर को हाई प्रेशर के बड़े बड़े टैंक में स्टोर कर लो, और जब पावर की डिमांड ज्यादा हुई उस कंप्रेस एयर से आप जो एक बिजली का यूज करके उसको सप्लाई पूरा कर सकते हो। तो ये एक टेक्निक है आपकी, अगर फ्लक्चुएशन है डिमांड और सप्लाई में तो ये तरीका अपना सकते हो। ठीक है, बाकी आपने स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मीटरिंग तो देखा होगा। स्मार्ट मीटरिंग क्या है? स्मार्ट मीटरिंग क्या है कि आपके घर में स्मार्ट लगा हुआ है, तो आप कभी भी आप अपने उस मीटर की हेल्प से आप देख सकते हो कि मेरे घर में बिजली की डिमांड कब होती है, रिक्वायरमेंट कब होता है, या कम कब होता है, ज्यादा होता है कम होता है। किसी इंडस्ट्री में लगाओ तो उसको भी पता चलता है कि मेरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में पावर की जो डिमांड वो फ्लक्चुएट कर रही है, तो ज्यादा का कम कब ज्यादा है। इससे आपको एक और भी पता चलता है कि मेरी अब तक महीने के बीच में मार्क आपने मेरी अब तक कितना बिजली कंज्यूम होगी, मेरा बिल क्या आएगा। अगर आप उसका कुछ एक्शन लेना है कि यार मैं इतना बिल तो नहीं होना चाहिए, मेरे को अभी भी कम यूज करनी चाहिए, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, आपको कुछ डिसीजन लेने के लिए ये स्मार्ट मीटर की हेल्प मिलती है। और खास करके इंडस्ट्री में जो इसका काफी ज्यादा यूज होता है। इंडस्ट्री के लिए पावर के जो रेट है बिजली बोर्ड के अलग अलग होते हैं, एक रेट नहीं होता, घरों के लिए एक है। इंडस्ट्री में टाइम डे है, आपको जब पीक लोड होती है दिन के समय तो रेट ज्यादा होते हैं, रात के समय क्योंकि डिमांड कम होती है, कई इंडस्ट्री बंद होती हैं, घरों में डिमांड कम होती है या ऑफिस में डिमांड कम होती है, तो रेट कम होते हैं। तो इसी के लिए एक डिसीजन लेने के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो कब अपनी मशीनों को ज्यादा चलाएं जब रेट कम है, और कब मशीनें कम चलाएं जब लाइक दैट। तो ये सारी चीजें स्मार्ट मीटरिंग से काफी ज्यादा करने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हो गया हाइड्रोजन का। अब आते हैं गो टू स्लाइड नंबर 4, जस्ट ए मिनट। अभी मैं थोड़ा आपको करने लायक बताता हूं कि आप क्या क्या स्टेप ले सकते हो किसी होटल में या कहीं लाइट में पावर सेविंग के लिए। आपको शायद आपने पढ़ा भी होगा, आपने पढ़ा लक्स लेवल के बारे में या लक्स मीटर, कोई बताए मेरे को। लाइट में एक मीटर आता है लाइट का लेवल चेक करने के लिए, उसको बोलते हैं मीटर। पढ़ा है या सुना है? सर रिपीट दी सर, आवाज नहीं आ रही। लक्स मीटर सर? हाँ, लक्स मीटर सुना है कि आपने, आपके सिलेबस में होता है कि नहीं? सर सिलेबस मैं में बताता तो हूँ, नहीं है, ओके, नो प्रॉब्लम, कई बार नहीं भी हो सकता। बेसिकली किसी भी एरिया में लाइट जिसे हम बोलते हैं रोशनी, कम या ज्यादा हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, उसको टेक्निकल भाषा में उसका नाम है लक्स लेवल, LUX, जो सामने सेकंड पैराग्राफ का वर्ड है UX, कि हम कहेंगे किसी एरिया में लाइट का लेवल कम है तो हम उसको बोलेंगे लक्स लेवल इज लेस। लाइट ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा, तो बोलेंगे लक्स लेवल इज हाई।
और किसी भी सोर्स ऑफ लाइट की जो आउटपुट है, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट की आउटपुट है, जैसे कोई 10 वाट का एलईडी है, 20 वाट का एलईडी है, या 40 वाट की ट्यूबलाइट है, एक 100 वाट का बल्ब है, हर एक की जो आउटपुट है उसको मापते हैं ल्यूमन। उसका नाम क्या है? ल्यूमन। और ल्यूमन। एक स्क्वायर मीटर, हाँ, एक स्क्वायर मीटर में कितना ल्यूमन फोक रहा है वो बनता है लक्स लेवल। ठीक है। उदाहरण के लिए मान लिया आपका जैसे एक 20 वाट का एलईडी बल्ब है, आपके रूम के अंदर ऊपर छत पे लगा है, सीलिंग पे, और नीचे फ्लोर के ऊपर एक स्क्वायर मीटर में उसका कितना ल्यूमन फोकस हो रहा है, उसकी आउटपुट तो ल्यूमन में है, वो लाइट ऑन होने पे वो ल्यूमन बनाएगा, पर एक स्क्वायर मीटर एरिया में कितने ल्यूमन है वो बढ़ेगा लक्स लेवल। ठीक है। अगर उसी बल्ब को हम छत के लगाने के बजाय उसको तार आगे बढ़ा के उसको हैंग करके लटका के नीचे ले आते हैं और आपकी टेबल के ऊपर थोड़ा सा ऊपर करके फोकस करते हैं, तो एक स्क्वायर मीटर में उसका जो ल्यूमन फोकस होगा वो ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? यस सर। हेलो, यस सर। हो जाएगा ना? हो जाएगा। जी तो सर। उस समय कहेंगे कि उसका हो गया कि लक्स लेवल ज्यादा हो गया। पॉइंट मेरा ये है कि एक सब लाइट तो सेम है, उसको लगाने के तरीका जो है उससे का चेंज करके अपने काम की जगह पे आपकी स्टडी टेबल के ऊपर लक्स लेवल को बढ़ाने के लिए उसका तरीका लगाने का, लटका के लगाने से आपका इंप्रूव हो गया। अगर आपको 20 वॉट का एलईडी बल्ब छत में लगाने से आपको पूरी लाइट टेबल पे मिल रही थी, आपका काम चल रहा था, हो सकता है आपको लटका के 10 वाट का, अगर 20 या 10 वाट का भी एलईडी लग जाएगा तो काम चल जाएगा। ये पावर सेविंग हो गई कि नहीं? यस सर, क्योंकि सर 20 वाट का ज्यादा सर एनर्जी वेस्ट करेगा हाँ, सर। हाँ, वो एनर्जी वेस्ट नहीं है, क्योंकि वो लगा ऊपर है, छत के ऊपर लगा है, छत के अंदर ही फिक्स किया हुआ है। तो उसकी वजह से जो ल्यूमन है वो एक स्क्वायर मीटर या टेबल का या उसके ऊपर ल्यूमन कम होगा। अगर उसको हम लटका के नीचे करेंगे तो वो ज्यादा ल्यूमन हो जाएगा। उसको वो ज्यादा ल्यूमन हमें चाहिए नहीं, हमें पूरा चाहिए। तो इवन 10 वाट का एलईडी बल्ब भी होगा तो वो पूरा हमारा ल्यूमन जो चाहिए हमें मिल जाएगा, क्योंकि अभी हमने लटका के लगाया है। ज्यादा नजदीक आ गया तो ज्यादा फोकस हो जाएगा ना एक स्क्वायर मीटर में। जी सर। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब ऊपर लगा है, हैंग करके भी लगाया है, उसके ऊपर शेड नहीं है, होता ना एक सोर्स लाइट के ऊपर एक शेड होती है। अगर शेड है तो वो ज्यादा नीचे फोकस ल्यूमन, है ना? अगर शेड नहीं है तो ल्यूमन फोकस कम हो जाएगा। शेड समझ जाओ ना, ऊपर जो उसके ऊपर कवर है। यस सर, समझ गए। इसी तरह से अगर आप आपके कमरे के अंदर आपका स्टडी रूम है, आपकी टेबल के ऊपर एक टेबल लैंप लगा देते हैं, यार आप एक टेबल लैंप लगा देते हो, उसमें हो सकता है 5 वाट का या 6 वाट का एलईडी बल्ब भी काम कर जाए, क्योंकि बिल्कुल आपकी बुक पर या कॉपी के ऊपर या आपके जो भी चीज पढ़ रहे हो उसके ऊपर ज्यादा फोकस हो जाएगा, उसका लेवल लक्स लेवल ज्यादा हो जाएगा, है नहीं? यस सर। तो ये बातें हैं लाइटिंग में सोचने लायक, आपको करने लायक, कि आपकी लाइट कैसे लगी है, कैसे लगानी है, कितनी वाट का लगाना और कितना ल्यूमन रुकाना है। ये एक लक्स लेवल दें जो डिजायरेबल। आपका लक्स लेवल क्या है? ऑफिस एरिया में पढ़ने लिखने के लिए 300 का, लक्स लेवल का मतलब हो गया 300 ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर। स्टेयर केस में 100 और 100 ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर। कैंटीन में 150। कैंटीन में क्यों बढ़ा दिया? स्टेयर के सीढ़ियों में कम है, कैंटीन में ज्यादा है, क्योंकि कैंटीन में आपने खाना खाना है, वहां पर लाइट कम नहीं चलेगी। कॉरिडोर एरिया, आपके जो एक आपके जो इंस्टीट्यूट में भी कॉरिडोर्स होंगे तो वहां पर लेवल 70 है। वी डोंट वांट लेवल 100 300 लेवल दिया।
क्योंकि वहां पर पढ़ना लिखना नहीं है। यस सर। तो ये जो लेवल्स हैं, इसका हमने एक गाइडेंस है, एक गाइडिंग पैरामीटर्स है कि इस एरिया में इसी लेवल से सफिशिएंट है। बेसिकली देखा जाए लाइट चाहिए किसको, जिस उस एरिया आदमी को, उस एरिया को किस आदमी ने यूज करना है। आपस में किसी ने यूज करना है पढ़ने लिखने के लिए, फाइलों में काम करने के लिए, कंप्यूटर में काम करने के लिए, कैंटीन में यूज करना है खाना खाने के लिए, कॉरिडोर में क्या करना है, खाली चलना है। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो वहां पढ़ना लिखना तो है नहीं, तो 300 का लेवल नहीं, समझ गए नहीं। तो पॉइंट ये है कि आपको लेवल जो है वो एक गाइडिंग है। ये देखिए, ये नहीं आपको दिखाए, अगर आपने इसकी फोटो लेनी है तो ले सकते हो अपने मोबाइल वगैरह से। तो ये जो है ये एक इस स्लाइड में देखिए, पहली कॉलम में लाइट्स है, जीएलएस मतलब पुराने टाइप का बल्ब, सीएफएल हैलोजन लाइट, एचपीएमवी हाई प्रेशर मर्करी लाइट, मेटल हलाइट, टीएल ट्यूब लाइट, एचपीएसवी हाई प्रेशर सोडियम वेपर। देखा बहुत हाईवे को पीले रंग की लाइट होती है, उसको बोलते हैं सोडियम वेपर लाइट। और सबसे नीचे है एलईडी लाइट। तो एलईडी लाइट देखिए, अभी मैं जा रहा हूं, कॉलम है 5वां नंबर, 5वां कॉलम नंबर पे लिखा है ओवरऑल एफिकेसी। ओवरऑल एफिकेसी क्या है, ल्यूमेंस पर वाट, मतलब वो सोर्स ऑफ लाइट 1 वाट पावर के पीछे कितने ल्यूमन आउटपुट दे रहा है। जीएलएस ऑर्डिनरी बल्ब कितना दे रहा है, 14, और सीएफएल कितना दे रहा है, सीएफएल कितना दे रहा है, आप स्लाइड को देख नहीं रहे, 55। दैट मीन ऑर्डिनरी बल्ब से सीएफएल जो है वो 4 गुना ज्यादा आउटपुट लाइट की रोज दे रहा है। और एलईडी कितना दे रहा है, 100, एलईडी कितना दे रहा है सबसे नीचे, सर 194, 120 यार, 190 सर 104 है वो सर एचपीएसवी है, वो एलईडी एचपी वो है ना, एचपीएसवी के अगेंस्ट है 104, वो उसके ऊपर लाइट जो पीले रंग की लाइट है। सबसे नीचे एलईडी है वो एक जरा 120, दैट मीन वॉट के पीछे एलईडी बल्ब 120 ल्यूमन दे रहा है। जो ऑर्डिनरी बल्ब होता था, जो हम आजकल कहते हैं यूज नहीं करना चाहिए, पावर की वेस्टेज होती है, उसकी कंपैरिजन में वो 8 गुना 9 गुना ज्यादा दे रहा है लाइट एलईडी। इसलिए हमारी रिकमेंडेशन है कि ज्यादा से ज्यादा एलईडी बल्ब का यूज किया जाए, समझ गए। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये एक होटल का रूम है। ये मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, उस कॉन्फ्रेंस में बैठे बैठे मेरा ध्यान क्यों ना एक फोटो खींच के लोगों को बताया जाए कि देखो एक होटल का रूम है और कॉन्फ्रेंस हो रही है, लोगों को पढ़ने लिखने के लिए भी लाइट चाहिए, इतनी लाइट तो चाहिए क्योंकि कोई लिखना पड़ सकता है, कुछ पढ़ना पड़ सकता है। और सारे इस कॉन्फ्रेंस के हॉल में एलईडी बल्ब लगे हैं, होटल का रूम और एलईडी बल्ब लगा, और टोटल मिला के वाटेज बहुत ज्यादा नहीं होगी, और हर टेबल के ऊपर लाइट सफिशिएंट मिल रही है। तो पॉइंट ये है कि एलईडी बल्ब इज अ बेटर थिंग नाउअडेज टू सेव पावर। ये देखो एक स्मार्ट चिमनी है, स्मार्ट चिमनी जो है ये आपके होटल में भी यूज हो सकती है। ये आपके होटल के लिए बेटर एक स्लाइड है कि स्मार्ट चिमनी लगाओगे, आपका ऑन ऑफ करने का जब वो एक स्मार्ट तरीके से हो जाएगा कि जब आपके वहां पर एरिया में कोई धुआं ज्यादा हो गया या स्मोक ज्यादा हो गया तो वो चलेगी, जब डाउन हो गया तो अपने आप बंद हो जाएगी पावर की सेविंग। फूड एरिया में, फूड प्रेपरेशन एरिया में। फिर यूज ऑफ सम सेंसर्स, एफिशिएंट सोर्स ऑफ लाइट। आपने मार्केट में कभी जाके फ्रिज खरीदा हो, एयर कंडीशनर खरीदा हो, कभी सीलिंग फैन खरीदा हो, इवन कई एलईडी बल्ब के इवन बल्ब के ऊपर भी आ रहा है, उसके जो डब्बे के ऊपर स्टार बने होते हैं, देखा आपने, लाल रंग स्टार। वो स्टार क्या इंडिकेट करते हैं कि कौन सी चीज स्टार जो है रेटिंग वो, इंडिकेट्स द पावर कंजम्पशन। हाँ, वो पावर कंजम्पशन की इंडिकेशन है कि ज्यादा स्टार का मतलब है कि वो
अच्छा है, एनर्जी एफिशिएंट है, पावर कम खाएगा। सेम चीज, सेम सीलिंग फैन 4 स्टार का है और एक सीलिंग फैन 3 वाला है, तो 4 वाला 3 से बेटर है। इलेक्ट्रिकल मोटर्स में भी ये स्टार रेटिंग है। इसलिए हमेशा या एक फ्रिज खरीदा आपने, 4 वाला 3 वाले से बेटर है, पावर कम खाएगा। है पावर कम खाएगा, काम तो उसे सेम करना है, 2 से कम खाएगा, 2 वाला 1 से कम खाएगा। और जिसके ऊपर कुछ नहीं है तो आपको उसका कोई आइडिया नहीं लग सकता कि वो पावर कितनी खाएगा। तो हमेशा वी शुड गो फॉर हायर स्टार रेटिंग। ऑक्यूपेंसी सेंसर एक थर्ड है, ऑक्यूपेंसी सेंसर। ऑक्यूपेंसी सेंसर क्या है? आपका किसी एरिया में ऑफिस है, ऑफिस की चेयर पर एक सेंसर लगा है, अगर सेंसर को नीचे चेयर खाली मिलती है, आपने सेट रखा है कि खाली चेयर 5 मिनट के लिए उस सेंसर को दिखाई दे, तो वो लाइट ऑफ कर दे या उसके साथ जो भी कनेक्शन है वो कर दे तो कर देगा। ये ऑफिस के लिए काफी एप्लीकेबल है। कई बड़े ऑफिस में 50-60 लोग एक ही हॉल में बैठे होते हैं, उनकी हर एक के टेबल के ऊपर लगी होती है। कई बार वो केयरलेसनेस की वजह से, लापरवाही से बिजली बंद नहीं करते, सेंसर अगर लगे हैं तो वो काम हो जाएगा। मोशन सेंसर भी होते हैं किसी एरिया में। फॉर एग्जाम्पल आपका होटल ही है, आपका होटल के एरिया में फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फंक्शन हो रहा है, कोई मैरिज हो रही है, कोई फंक्शन डे, कोई बर्थडे जा रहा है, तो कई आपके जो होटल में जो एरियाज होते हैं वो वही होते हैं। पर कोई आपके फंक्शन नहीं हो रहा, कोई ऐसा कोई नहीं हुआ, तो आपको किसी एरिया में कोई काम पड़ता है जाने का के समय, तो आप लाइट अपने आप लाइट ऑफ ऑन करो ऑफ करो, उसकी बजाय उसकी एंट्रेंस के ऊपर एक मोशन सेंसर लगा हो, उस बड़े हॉल की एंट्रेंस में मोशन सेंसर लगा हो। अगर आप रात के आप उस गेट के अंदर गए, उस हॉल के अंदर गए, तो मोशन सेंसर को नीचे मोशन दिखाए तो वो एक लाइट ऑन कर देगा जो उसके साथ कनेक्टेड है। और उसको लगेगा कि 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, कोई मेरे नीचे मोशन नहीं हो रही, मूवमेंट नहीं हो रही, तो वो उस लाइट को बंद भी कर देगा। इसका मतलब क्या कि वो ऑटोमेटिकली, अगर किसी ने उस एरिया में जाके कुछ देखना है, कुछ चेक करना है, उसने अपनी लाइट ऑफ नहीं भी करेगा, ऑन भी नहीं करेगा, तो वो सेंसर काम करेगा। आमतौर पे ये जो सेंसर का है, इसका एप्लीकेशन जो वॉशरूम्स होते हैं बड़े बड़ी बिल्डिंग में, बड़े बड़े ऑफिस में या होटल में, वो क्योंकि वॉशरूम के अंदर लाइट जलती रहना परमानेंट सारा रात, वो तो नहीं अच्छा। तो उसके गेट के ऊपर अगर ऐसा अरेंजमेंट हो जाए, सेंसर लग जाए, तो वॉशरूम में कोई जाने वाला, कोई यूज करने वाला, वो लाइट उसके हिसाब से जल जाए, बेटर है। तो ये सब यूज करने लायक चीजें हैं लाइटिंग में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डे लाइट का यूज करना, जितना ऊपर जो ग्लास की पैनल लगा है उसमें दिन के समय की जो लाइट है, रोशनी, वो काफी नीचे तक आ रही है। लोग इस अम्बेडकर में दिल्ली के अंदर आ जा रहे हैं देखने के लिए, घूम के लिए, उनको लाइट की जरूरत नहीं है, लाइट इज रिक्वायर्ड, तो दैट टाइप ऑफ थिंग। अब ये देखिए, ये किसी होटल का भी हो सकता है, किसी ऑफिस का भी हो सकता है। वॉशरूम है, अब इस वॉशरूम के ऊपर एलईडी बल्ब लगे, पावर की बेसिस होगी, सेंसर लगे, यूरिनल में सेंसर लगा है, इस पानी की के नीचे में सेंसर लगा है। आप पानी की टूटी के नीचे हाथ करते हो, पानी फ्लो करता है, हाथ से कर लेते हो, पानी बंद हो जाता है, तो किसी को बंद करने की, खोलने की जरूरत ही नहीं। इस तरह यूरिनल में भी है। तो ये पानी की वाटर कंजर्वेशन के लिए इस तरह का सेंसर का यूज होना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यस हेलो, सर। ओके। नाउ ये स्लाइड में बताया जाता है कि एयर कूलर, फैन, रेफ्रिजरेटर, गीजर, इमर्शन रॉड, इलेक्ट्रिक केटल, हॉट प्लेट कितने वाट की है और कितनी पावर कंजम्पशन करेगा पर ऑफ 10 आवर्स। तो ये एक जो आपके सामने एक चीज होगी तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि यार मैं जो ये चीज यूज कर रहा हूं इससे तो काफी ज्यादा खर्चा आता है।
अदरवाइज अगर आपको इसका नॉलेज ना होगा तो आप यूज तो करोगे और आपका बाद में बिजली का बिल तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इन चीजों का पता होना भी बहुत जरूरी। ये है सेंसर का, जो मैंने आपको कहा ना, ऑक्यूपेंसी सेंसर। इस टाइप के एरिया ऑक्यूपेंसी सेंसर का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप देखो इस हॉल के अंदर ऐसा लग रहा है कोई भी आदमी चेयर पे नहीं बैठा, सभी लोग लंच के लिए चले गए, पर लाइटें ऑन है, तो सेंसर लगे होंगे तो वो काम करेगा। ओके, फूड प्रेपरेशन। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, खाना बनाने के लिए आपके कोई बता सकता है मेरे को, खाना बनाने के लिए आपको एलपीजी की या पीएनजी की बचत करने के लिए आप किसी होटल में काम कर रहे हो, व्हाट पॉइंट यू विल टेल जो फूड बनाने वाले, जो किचन में काम करने वाले लोग होंगे, आप उनको क्या बताओगे कि ये करना चाहिए, या आपके जो आपका बॉस है, आपका बॉस है कोई, आप उसको क्या बताओगे कि सर रिकमेंडेशन ये है या मेरा आपको कहना ये है कि ये करना चाहिए, क्या करोगे? या आपके घर में एलपीजी का सिलेंडर है, घर पे खाना बनाते हैं आपके सिस्टर जो भी बनाते हैं, आप उनको कुछ पॉइंट बता सकते हो कि आपके सिलेंडर की जो लाइफ है, सिलेंडर मान लो 1 महीने में हो जाता है, आप 30 दिन की बजाय कोई 35 दिन 36 दिन चले, तो उसके लिए कोई आप रिकमेंड कर सकते हो? बोलिए। एक्स्ट्रा फ्लेम नहीं कर, ज्यादा तेज गैस नहीं करनी चाहिए, जैसे बर्तन के बाहर एक्स्ट्रा फ्लेम निकल रही थी वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी। यस, मतलब आपके जो बर्तन का साइज है वो ऐसा होना चाहिए कि फ्लेम बाहर ना जाए। अगर आपका फ्लेम जाती है तो या तो बर्तन का साइज बड़ा करो, या फ्लेम फिर भी बाहर जा रही है तो आप बर्नर का साइज छोटा करो। तो बर्नर भी होता है ना, बड़ा छोटा मिडल, ठीक है। और व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? पहले ये बताओ मेरे को कि पीएनजी हो या एलपीजी हो, खाना कैसे बनता है? पीएनजी जलती है, सीएनजी एलपीजी जलती है बर्नर में, और जलने से हीट पैदा होती है और उससे खाना बनता है, ठीक है ना? क्यों जी? यस सर। तो खाना बनाने के लिए हमें हीट चाहिए, और हर एक फ्यूल की, चाहे कोयला है, 4 किलोग्राम कोयले की कितनी हीट वैल्यू है, पर लीटर ऑफ डीजल की कितनी हीट वैल्यू है, पर लीटर ऑफ पेट्रोल की कितनी हीट वैल्यू है, पर किलोग्राम ऑफ पीएनजी या एलपीजी कितनी हीट वैल्यू है, वो आपको मिल सकती है, और वो मिलनी भी चाहिए। इसको हम बोलते हैं क्लोरिफिक वैल्यू। जानते हो क्लोरिफिक वैल्यू? आपने फिजिक्स में पढ़ा है जी ना? सर। तो क्लोरिफिक वैल्यू हर फ्यूल की होती है। तो आपको इस पीएनजी या एलपीजी जो खाना बनाने के लिए यूज हो रही है उसकी पूरी हीट मिलनी चाहिए, और पूरी हीट कब मिलती है? वो पूरी तरह से जलती है, पूरी तरह से, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, पूरी तरह से जलती है, कंप्लीट कंबस्टन। तो कंप्लीट कंबस्टन आपकी एलपीजी की या पीएनजी की हो रही है कि नहीं हो रही, आपको क्या करना है? जल तो रही है, उसके लिए देखना है फ्लेम का रंग ब्लू। क्या होना चाहिए? ब्लू। क्या होना चाहिए रंग? ब्लू। ब्लू। ब्लू कलर होना चाहिए। जब ब्लू कलर का फ्लेम है तो हम ये यकीन कर सकते हैं कि हमारी पूरी हीट मिल रही होगी। अगर ब्लू रंग नहीं होगा, पीलापन पे होगा, रेड पे थोड़ा होगा, तो भी हीट मिल रही है, पर हीट कम मिल रही है, उतना देर से बनेगा, उतना देर लगाएगा खाना पकने में, तो एलपीजी की पीएनजी की लागत ज्यादा होगी। और ये कब होता है? जब आप बर्नर की होल में कुछ फंस जाता है, या बर्नर की सफाई की रिक्वायरमेंट होती है, आप बर्नर को साफ करते हो तो वो ठीक हो जाता है, ब्लू फ्लेम आ जाती है। बर्नर के टॉप पे देखोगे तो 2 सर्कल में होल होते हैं, अंदर के सर्कल कनेक्टेड है गैस से। देखा ना बर्नर कभी ऊपर से देखा कि नहीं बर्नर को? यस सर। जी सर। बर्नर में 2 सर्कल में होल होते हैं,
एक अंदर सर्कल होल है, एक बाहर सर्कल में होल है। अंदर के सर्कल के होल से कनेक्शन है गैस सिलेंडर का, वो गैस आती है उनमें। बाहर का सिलेंडर से क्या कनेक्शन है? किचन का एनवायरमेंट। और किसी भी चीज को जलाने के लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, होती है, वो क्या है? व्हाट इज द मेजर? ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो आपको किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन इज अ मस्ट, और हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं होती है। हमारे एनवायरमेंट में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है। तो एनवायरमेंट के जो 21% ऑक्सीजन है वो हमारी पीएन को या एलपीजी को जलाने में जरूरी है, जलाती है। तो हमारा गैस जो है अंदर के होल से एंटर की, बाकी होल से हवा उसने ली, एयर और फ्यूल, एयर और गैस का मिक्सचर बना, उसको हम लाइटर से जलाते हैं। पर अगर ये एयर फ्यूल रेशो पूरी जो रेशो ठीक नहीं है, अगर हवा में कमी हो गई क्योंकि होल में कुछ फंसा हुआ है तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, है ना? तो ऑक्सीजन की कमी होने से आपकी फ्लेम, आपकी जो गैस है पूरी तरीके से नहीं जलेगी और फ्लेम का रंग नीला नहीं रहेगा, पीलापन भी हो जाएगा। हीट देगा पर कम मिलेगी और क्योंकि ठीक से नहीं जल रही है। ठीक है, ये चीजों का आपको एक अंदेशा होना चाहिए। आप होटल वालों को जब भी आप रह रहे हो, होटल में देख रहे हो, तो आपका ये पॉइंट भी होगा किचन वालों को समझाना कि भाई ये ब्लू फ्लेम नहीं है, इसका बर्नर साफ करने की जरूरत है। या आप उस होटल में एक रूटीन बना दो कि हमने हर हफ्ते सारे बर्नर 1 by 1 साफ करने ही है। तो ये को डिपेंड करेगा, बिकॉज यू आर द इंचार्ज। आपको ये कराना पड़ेगा या करना होगा या करके दिखाना होगा। और क्या कर सकते हैं घर? अच्छा, एक पॉइंट और है, मैं कई होटल में गया हूं, आपने भी शायद गए थे, होटल में एक पायलट बर्नर का चलन है, पायलट बर्नर। वो पायलट बर्नर क्या होता है? एक छोटा सा एक लौ जो है वो जलती रहती, परमानेंट जलाए रखते हैं। वो इसलिए होती है कि आप कोई और बर्नर को ऑन करना है तो लाइटर नहीं लेते, वो पायलट बर्नर की जो फ्लेम है उसको उठा के वो बर्नर पे ले आते हैं और जलाते हैं और उस पायलट बर्नर को जलता रखते हैं। तो हमारा पॉइंट ये है कि ये पायलट बर्नर में भी एक सोचने की जरूरत है कि इंस्टेड ऑफ बर्नर जलती रहे, उसकी बजाय बेटर ये है कि आप लाइटर का यूज करो और परमानेंट ना जलाने को वेस्ट है खाली, क्योंकि पायलट बर्नर जो वो खाली वेस्ट हो, कोई उसका यूज नहीं कर रहे हीट का। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? आप घर वालों को और कोई पॉइंट नहीं समझाओगे? प्रेशर कुकर में खाना बनाना, जितना प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनेगा और गैस की बचत होगी। और सही पहली विजिल होती है, गैस को उतना कम करना है कि वो प्रेशर बना रहे। खुले बर्तन में खाना बना रहे हैं तो उसमें भी आपको ढक के बनाना है और बॉयलिंग आने पे गैस को कम करना है, क्योंकि बॉयलिंग 100 डिग्री पे होती है। और उसके बाद भी अगर फुल गैस रखेंगे, रहने देंगे, तो 101 टेम्परेचर नहीं जाता, खाली पानी जल्दी उड़ेगा पर टेम्परेचर 100 ही रहेगा। इसलिए खुले बर्तन में खाना बनाओ, ढक के बनाओ, बॉयलिंग आने पे गैस को सिम करो, बॉयलिंग होती रहे, बस दैट्स ऑल। फिर फ्रिज के अंदर कोई चीज आपने रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नॉन वेज वगैरह है, इवन कोई दूध वगैरह रखा है, उसको आपने बॉयल करना है, तो उसको पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले बाहर निकाल के रख लो, फिर इसके ऊपर रखोगे, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। ये पॉइंटों को आपने बताना है। ये देखिए, प्रेशर कुकर में खाना बना, ये सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। अगर प्रेशर कुकर में खाना बना रहे हैं तो राइस बनाने में 20% की गैस है, 46% दाल वगैरह पे है, 41.5% नॉन वेज वगैरह पे होती है। तो ये हमारी एक स्टडी से फाइंडिंग है कि आपने होटल में भी ये चीजों को लागू करवाना है।
सोकिंग बिफोर कुकिंग, जानते हो सोकिंग का मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय सोकिंग? भिगोना। चीज को भिगा के रखना। हाँ, तो ये होटल में भी मैंने कई होटल में ट्रेनिंग दी है। मैं उनको भी, उनके जो फूड एरिया के लोगों को पूछता हूँ, वो कहते हैं हाँ जी हम रखते हैं, करते हैं। हमारे मेनू में मान लो नेक्स्ट डे की मेनू में ये है कि हमने दाल बनानी है, चने बनाने हैं, कितने लोगों का खाना बनना है, तो हम उसी के हिसाब से उसको भिगोते हैं। और ये भिगोने से फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि उसके अंदर उसके गैस की लागत में कमी आती है। और ये देखा गया है कि लगभग 22% चने बनाने का एग्जाम्पल, सेकंड पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल है कि काबुली चना बनाने में देखा कि 22% गैस की लागत कम हुई अगर उसको भिगो के बनाया था। अब ये आपके होटल है, ये होटल के अंदर कोल्ड रूम होते हैं। अगर आप ये होटल के एम्प्लॉय को ये ड्रेस पहननी होती है, देखा ना कभी आपने? यस सर। आपके आपके इंस्टीट्यूट में भी ऐसा है ना, फूड प्रिपरेशन का एरिया? यस सर। जी सर। मैं एक इंस्टीट्यूट में गया था पंजाब में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर थी। तो उनका एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट, उनकी एक किचन है। और जो स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, उनको कुछ दिनों के लिए उसके भी आना होता है प्रैक्टिकल। और वो उनको ये भी सिखाया जाता है कि खाना सर्व कैसे करना है। बाई चांस जब मैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए गया तो उनके सीनियर जो प्रिंसिपल हो गया या प्रोफेसर वगैरह थे, वो मेरे साथ खाना खाने के लिए बैठे। और खाना जो हमारे टेबल पे ला रहे थे, प्लेटें लगाना, खाना परोसना, और वो सारी चीजें जो है वो कौन कर रहे थे? स्टूडेंट थे। आपको भी सिखाया जाता है ऐसे? नहीं? हेलो? यस सर, सिखाया जाता है। आप मेरी बात कर, आप बोलने में देर क्यों लगाई? सर योर वॉइस इज लैगिंग। तो ये चीजें जो है, तो ये एक चीजें जो है एक प्रैक्टिकल रूप में आपको सिखाई जाती होंगी। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बाई द वे मैंने बात की, वैसे इस प्रोग्राम की बात करी, पर बाई द वे ऐसा भी होता है। वॉइस लैग हो रही है। तो ये कोल्ड रूम वगैरह अच्छा, क्या मतलब लैग होने का मतलब क्या समझूं मैं? सर अटक अटक के आ रही है। कि ब्रेक हो रही है कि या आ ही नहीं रही? अब ब्रेक ठीक हो है? रही है, ब्रेक हो रही है। मेरी 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 वीडियो तो नहीं आ रही ना? मैंने वीडियो बंद कर दी थी ना, कई बार उसका फर्क पड़ता है, लोड पड़ता है ना वीडियो का। मेरी वीडियो नहीं है ना? नहीं है सर, बंद है वीडियो। ठीक, वो बीच हाँ बीच वीडियो में मैंने थोड़ा बंद कर लैग रखी है हो रहा है, अपनी। बाकी ठीक है। ओके ओके, मैं थोड़ा ठीक है। तो ये जो कोल्ड रूम का सामने सीन है, इसके अंदर कुछ आपने मटेरियल रखा होता है, टेम्परेचर काफी लो होता है। एक डीप फ्रीजर होते हैं। आपने डीप फ्रीजर का नाम सुना है? डीप Yes, फ्रीजर sir. जस्ट लाइक, यस हाँ, सर। तो डीप फ्रीजर वो फ्रिज वो हॉरिजॉन्टल होता है, ऊपर उसका जो ढक्कन है ऊपर होता है टॉप पे। ठीक है? तो ये कोल्ड रूम है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी होती हैं। मेरी तरफ से एक सजेशन है कि आमतौर पे होटल में देखा है कि डीप फ्रीजर या ये कोल्ड रूम किसी में 4 होंगे, 5 होंगे। तो उन्होंने कहीं पे नॉन वेज रखा हुआ है, कहीं पे दूध रखा है, कहीं पनीर रखा है, कहीं कोई और चीज रखे हैं, कहीं इवन वेजिटेबल जैसे मटर वगैरह हो गया या कुछ हो गया, वो रखे हुए हैं। तो हमारी तरफ से सजेशन ये है कि एक तो उनका टेम्परेचर कितना करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, ये आइटम के हिसाब से हर चीज का रिक्वायरमेंट है कि आपको इस टेम्परेचर तक ठीक है, उससे नीचे नहीं जाना है। जैसे मैंने बताया कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम कम करते हैं किसी एयर कंडीशन कमरे का भी, तो लगभग 3-4% पावर ज्यादा लगती है। तो इनके केस में भी पावर ज्यादा लगेगी अगर टेम्परेचर सेटिंग जो है हम जरूर ज्यादा नीचे रखेंगे, या जरूर से ज्यादा नीचे हो गया। मान लो आपका सेटिंग काम नहीं कर रही, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल काम नहीं कर रहा है, तो आपने उसको ठीक करवाना है और सेटिंग टेम्परेचर रखना है जो रिक्वायरमेंट है। दूसरा, इनमें पावर सेविंग का पॉइंट ये बनता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे 4 कोल्ड रूम हैं और 4 कोल्ड रूम की कुछ कैपेसिटी है, उसकी हाइट, लेंथ और विड्थ,
कि इसमें इतना सामान आ सकता है, चलता है, तो वो हवा ठंडी रहती है और सर्कुलेट होती रहती है, टेम्परेचर उसका डून हो जाता है। और इसके लिए ये सारा सिस्टम लगा होता है, इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, वेपोरेटर होता है, और आप होटल में अगर गए हो तो कूलिंग टावर भी इसके साथ लगे होते हैं, जो किसी दूर जगह पे लगे होते हैं। कूलिंग टावर में पानी ठंडा होता है, ऊपर से गर्म पानी पड़ता है, नीचे से हवा के पंखे लगे होते हैं, पानी ठंडा करते हैं, वो कंडेंसर में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो उनके मेंटेनेंस के लोग होते हैं। हर एक होटल में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, चीफ इंजीनियर, कहीं बड़े बड़े होटल चीफ इंजीनियर होता है, डिप्टी चीफ इंजीनियर होता है, और मैकेनिक्स होते हैं, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं। तो वो आपको जब होटल में आप जाओगे तो वहां पर आपको मिलेंगे, उनसे आपको काम करना होगा, उनके साथ मिलके काम करना होगा, तो ये सारी चीजें मिलेंगी। तो उस केस में आपके लिए इस एयर कंडीशन सिस्टम के अंदर आपको देखना है कि कोई भी टेम्परेचर जो सेट करना है वो प्रॉपर सेटिंग हो और एनर्जी का वेस्ट ना हो। कूलिंग रूम में कोई है नहीं, किसी बड़े हॉल के अंदर कोई फंक्शन हो गया, फंक्शन खत्म हो गया, कोई बर्थडे हो गया, कोई मैरिज फंक्शन था वो खत्म हो गया, उस सिस्टम उस एरिया का एयर क्लीनिंग चालू है, वो गलत होगा, उसको बंद करना चाहिए। उसके लिए भी आपको, आप जब में जाओगे आपको पता लग जाएगा कि हर एक एरिया का एयर कंडीशनिंग का सिस्टम जो है वो अलग अलग हो, वो बंद किया जा सकता है, आइसोलेट कर सकते हैं। ये एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर स्प्लिट टाइप के एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा है, तो ये भी एक देखने की चीज है। जस्ट ए मिनट, ज्यादा टाइम नहीं अभी लूंगा क्योंकि आपका काफी टाइम हो गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये मैंने टेम्परेचर की सेटिंग की बात करी, ये लॉन्ड्री में है, ये है लॉन्ड्री में। अभी लॉन्ड्री में देखिए, वहां पर वॉशिंग मशीन है, ड्रायर्स होते हैं, स्टीम का भी यूज होता है। तो उसके लिए भी देखना है कि जितनी स्टीम की लाइन आ रही है, पाइपलाइन, उसके ऊपर इंसुलेशन होनी चाहिए। स्टीम की पाइपलाइन के ऊपर कवरिंग है, इंसुलेशन। चिल्ड वाटर की लाइन के ऊपर कवरिंग होती है, वो कोल्ड इंसुलेशन होती है। तो आपकी एरिया में यहाँ भी आपकी लॉन्ड्री सिस्टम लगा है, वहां पर भी ये सारा इफेक्ट होना चाहिए। लाइट का आप देखो, इस एरिया में देखो, लाइट जो है, अब लाइट के अंदर लाइट जो है पूरी जल रही है। तो ये सिस्टम का आपने इंश्योर करना है कि इस एरिया में लाइट की जरूरत नहीं है, वो लाइट बंद हो सके। कोई सेंसर लगाओ, कंट्रोल करना है, क्या करना ही करना। और दूसरा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। आपकी वॉशिंग मशीन की 100 किलोग्राम की, किसी की या 50 किलोग्राम की, पर आपने उस वॉशिंग मशीन को चला लिया 20 किलोग्राम के लिए, ठीक है नहीं, आपका 100 किलोग्राम की लोड का, कपड़ों का लोड उसमें मशीन में वॉशिंग हो सकती है या किसी घर में हो सकती है, पर आप उसको 20 में 30 किलोग्राम का लोड से चला रहे हैं, तो आपकी वो इकोनॉमी नहीं रहेगी, वो इकोनॉमिकल नहीं है, वो वेस्टेज एनर्जी का हो गया। क्योंकि उसकी मोटर के ऊपर लोड तो वही, बिजली का खर्चा तो वही आना है, स्टीम का खर्चा तो वही आना, तो वाई नॉट टू रन इट व्हेन इट इज फुल कैपेसिटी। तो आपको ऐसा प्लानिंग करना है कि जब क्लोथ की वॉशिंग या ड्राइंग की वॉशिंग, ड्राई करने का लोड प्रॉपर हो गया, उसके हिसाब से मशीनों को चलाना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये है कि आपकी जो वॉशिंग मशीन की टाइप, फ्रंट लोडिंग, टॉप लोडिंग, वो मैनेजमेंट डिसाइड करना होता है कि कौन सी चाहिए। ग्रीन बिल्डिंग का आपको पता है, ग्रीन बिल्डिंग जो आपने की, वेस्ट टू एनर्जी, रिसाइकल, रीयूज, रिपेयर, रिकवर, ये चीजों का आजकल बड़ा एक मेन फोकस है, सबके लिए है कि आपको कोशिश करनी है कि आपका जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो पर्सनल लाइफ में, कहीं भी कर रहे हो, सोचो कि क्या वो रिसाइकल होने लायक है, रीयूज कर सकते हैं, उसको रिपेयर करके यूज कर सकते हैं। ये चीजों का सोचना करना बहुत जरूरी है। बायोगैस जनरेशन, आपको पता है कि आपके जो होटलों में जो वेस्ट होती है, फूड वेस्टेज, उसे हम बायो गैस में या बायोफ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। इवन आपके होटल में जो यूज ऑयल होता है, हेलो आप लिसनिंग नहीं, यस होटल सर। में जो खाना बनाने में ऑयल और कुकिंग ऑयल यूज होता है ना, तो
कुछ टाइम के बाद में वो ऑयल को डिस्कार्ड करना होता है, आपको क्या होगा क्या, क्योंकि उसमें ऐसी चीज है कि वो दोबारा यूज करने लायक रिकमेंडेड नहीं होता। कुछ यूज करने के बाद जो फ्राइंग ऑयल है या कुकिंग ऑयल है उसको डिस्कार्ड करना होता है। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, यूज कुकिंग ऑयल जो है ये जो है इसको हम बायोडीजल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी ऐसी एजेंसीज हैं, ऐसी कंपनी हैं, ऐसे लोग हैं जो होटलों से यूज ऑयल को कलेक्ट करके उसको बायोडीजल में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए मैं ये पॉइंट आपके मन में ये ला रहा हूं कि आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी नाउ आई एम गोइंग बैक टू स्लाइड नंबर 73, क्योंकि वो जस्ट a minute. ये आपने आया ग्रीन हाउस गैसेस। हेलो, इस स्लैब के सामने है ग्रीन हाउस गैसेस है। यस सर। ओके, तो ग्रीन हाउस गैसेस जी क्या है कि आपका कोयला जले, जी सर। सीएनजी सीएनजी की लागत हो, पीएनजी की लागत हो, एलपीजी की लागत हो, पेट्रोल डीजल की लागत हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। थोड़ी सा ज्यादा वो डिपेंडेंट कंपोजिशन ऑफ द फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। मीथेन गैस ये माइन करती है, कोल माइन से जमीन से नीचे तेल निकलता है, उसके साथ मीथेन गैस भी निकलती है। नाइट्रस ऑक्साइड, कोयला का जो प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट या प्लांट, कोयला जलता है तो नाइट्रस ऑक्साइड भी बनती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये रेफ्रिजरेंट की गैसेज है। फिर ओजोन गैस एनवायरमेंट होती है, वो ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग रीजन बनती हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे जमीन के अर्थ के चारों तरफ ग्रीन हाउस गैसेज हैं। सूरज की गर्मी हमारी धरती तक सोलर रेडिएशन की किरणें के थ्रू आती है, और ये ग्रीन हाउस गैसेज जो हमारी धरती के चारों तरफ हैं और इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। ये सूरज की गर्मी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करती हैं और कुछ भाग ये वापस भी एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज करती हैं। पर क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा बन रही हैं, हर 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 समय इनकी इनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, लोग ज्यादा पावर का, कोयले का, डीजल का, पेट्रोल का, पीएनजी सीएनजी का यूज कर रहे हैं, इन ज्यादा बन रही हैं, इसलिए जो कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब द हीट ऑफ सोलर रेडिएशन वो ज्यादा है। इसलिए अर्थ का जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो पहले से बढ़ता जा रहा है। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की आपको समझ आ गई? ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग ये है कि सूरज की गर्मी को ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आने से और उनकी ज्यादा होने से, कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब द हीट ज्यादा होने से अर्थ का एनवायरमेंट टेम्परेचर पहले से बढ़ता है। इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग का एक और सीन है, आपको एक्सप्लेन किया है। अब एक आता है कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है कि आप कार्बन की एमिशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन के लिए, पोल्यूशन के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है। उदाहरण के लिए छोटा एग्जांपल है, एक साइकिल पे है, एक बाइक पे है, एक कार पे है। कार वाले का कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है, बाइक वाले का उससे कम है, साइकिल वाले का 0 है। तो ये कार्बन फुटप्रिंट एक कंट्री का भी हो सकता है, एक सिटी का भी हो सकता है, एक कारखाने का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिल्क प्लांट है, एक गवर्नमेंट मिल्क प्लांट है, एक प्राइवेट मिल्क प्लांट है। तो मिल्क प्लांट की कैपेसिटी दोनों की मान लिया सेम है, पर कौन किसके मिल्क प्लांट के अंदर एनर्जी का, पावर का, पेट्रोल का, कोयले का यूज ज्यादा है, उसका कार्बन फुटप्रिंट होगा। तो ये कार्बन फुटप्रिंट को मैंने एक्सप्लेन किया। आगे ये देखिए, ये स्लाइड आप देख रहे हो, CO2 लेवल।
देख रहे हो CO2 लेवल। तो CO2 जो है जो ग्रीन हाउस गैस है एनवायरमेंट में, इसका 13 जून 21 को लेवल था 419 ppm। ppm का मतलब था पार्ट्स पर मिलियन, और ये लास्ट ईयर एक साल पहले 416, मतलब एक साल में 3 ppm बढ़ गया। 10 साल पहले 394, मतलब 25 अब बढ़ गया। और प्री इंडस्ट्रियल बेस 280 लेवल था, CO2 लेवल कितना था 280 पार्ट्स पर मिलियन ppm। प्री इंडस्ट्रियल बेस में जब जैसे कहते हैं ना औद्योगिक क्रांति, जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति आई थी उस समय लेवल ये था। ये क्रांति आई, ये लेवल बढ़ना शुरू हो गया, जो आज 419 के लेवल में पहुंच गया। तब 219 लेवल था, और ये कब था 1820 या 30 सन 1820 या 30 को। और सेफ लेवल क्या है 350। साइंटिस्ट ने ये अनुमान लगाया है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करना है, तो लेवल सेफ है 350 होना चाहिए, और हम कहा है 419 पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट ने यह भी कहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस की जो कंसंट्रेशन है उनके बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग से हमारा इम्पैक्ट क्या है, ये मैं इस स्लाइड में पढ़ रहा हूं, 4th पैराग्राफ अंडरलाइन। ग्लोबल वार्मिंग इज abnormal extreme severe sudden climate change condition। कौन सी abnormal, जो नॉर्मल नहीं है, एक्सट्रीम ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम। सीवियर और सडन, सडन का मतलब है कोई पहले इंटीमेशन नहीं है, सडनली हो जाना। इंपैक्टिंग द ह्यूमन लाइफ, फ्लोरा एंड फाउना, पेड़ पौधों के ऊपर भी असर, एग्रीकल्चर, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, मैरिन लाइफ, मैरिन लाइफ मतलब जो समुद्र पर जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर भी इसका ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है। कैसे है वो देखिए। फ्लैश फ्लड एंड फ्लड, फ्लड बहुत ज्यादा आना और फ्लैश फ्लड होना। फ्लैश फ्लड मतलब कोई पता नहीं कब हो जाए। साइक्लोन, हरिकेन, ये समुद्र के किनारे पे होते हैं, साइक्लोन या हरिकेन। लैंडस्लाइड और ग्लेशियर ब्रस्ट, हमारे उत्तराखंड में केदारनाथ टेम्पल के ऊपर 5-6 साल पहले जो हुआ था वो ये था, क्लाउड ब्रस्ट और ग्लेशियर। ये ग्लोबल वार्मिंग इसका रीजन है। अनफेल चीजों का होना, अबनॉर्मल कंडीशन होना। बरसात के मौसम में बरसात भी ठीक है, पर बरसात का मौसम ना हो और बरसात बहुत ज्यादा हो, ये सीजनल है। टू हॉट या हीट वेव, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना, सर्दियों में बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर जाना, कोल्ड वेव्स का चलना, ये एबनॉर्मल है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। राइज इन टेम्परेचर, एनवायरमेंट टेम्परेचर बढ़ने से मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर क्या है, ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर जो हमारी धरती के ऊपर नॉर्थ पोल ग्लेशियर मेल्ट होके पानी जाता है समुद्र में, और समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। और समुद्र का बढ़ने से जो समुद्र के किनारे पे लोगों को, रहने वालों को खतरा है, तो बहुत सारा एरिया पानी में आ जाएगा, आ भी रहा है। जंगलों में आग लगती है क्योंकि जो पेड़ पौधे सूख जाते हैं एवरेज टेम्परेचर बढ़ने से, जरा सी चिंगारी नहीं है और साथ में हवाएं तेज चलती हैं तो बड़ी दूर दूर तक आग फैलती है। हिमाचल, उत्तराखंड में, अमेरिका में, कैलिफोर्निया जैसी स्टेट में काफी ज्यादा आग लगती है, साल लगती है। आगे बढ़ रहा हूँ, ये देखिए, ये अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया में हर साल जंगलों में आग लगती है, बड़ी लंबी कई मीलों तक आग लगती है। लोगों के घर तक जलते हैं, गाड़ियां जलती हैं, लोग खुद भी मरते हैं। अमेरिका जैसे रिच कंट्री के अंदर ये हो रहा है, और इसका सीधा रीजन ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्लोबल वार्मिंग किसका रीजन है, क्लाइमेट चेंज करता है। और ग्लोबल वार्मिंग होती है ग्रीन हाउस गैसेस से। और ग्रीन हाउस गैसेस कैसे हो रही है, हमारे इन एनर्जी का, जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी का यूज ज्यादा हो रहा है, डीजल, पेट्रोल, कोयला, LPG, PNG, CNG, इनका ज्यादा यूज होता रहेगा, ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा बनेंगी ही। ये देखिए, अमेरिका में एक और स्टेट है, उसमें जंगलों में आग है, कितनी भयंकर आग है। ये देखिए,
अमेरिका कैलिफोर्निया में आग लगी तो 2018 में लगभग 200 लोग मिसिंग थे, उनका कोई पता नहीं लग रहा था कहाँ क्या हो गया। ये देखिए ब्राजील के अंदर एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है अमेज़न, उसमें आग लगी थी 2 साल पहले, तो बड़ी भयंकर, कई मीलों तक, कई किलोमीटर तक दूर तक आग लगी। और आग, जंगलों में आग लगने का नुकसान क्या है? क्या कोई बच्चा पता है? कोई एनिमल्स को इफेक्ट तो है, और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जंगलों में, ज्यादा यस यस, ये इम्पोर्टेंट है कि जितने जंगल होते जाएंगे, पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा होगी। क्योंकि ये जंगल जो है, पेड़ पौधे जो है, हमारी जो मेजर ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधे अपना फूड तैयार करते हैं और हमें क्या देते हैं? हमें ऑक्सीजन। क्या देते हैं? ऑक्सीजन। ये हमारे लिए एक अच्छी चीज है, ये हमारे लिए एक लाभदायक है, हमारी भलाई है। इसलिए पेड़ पौधों का काटना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। और जब ये जंगलों में आग लग रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये और भी हमारे लिए का विषय है। ठीक है, आगे ये समुद्री तूफान है। समुद्री तूफान में तो आपको पता है कि हमारे तमिलनाडु में, उड़ीसा के किनारे पे, बंगाल के एरिया में अभी हर साल कई तबाही करने वाले तूफान आते हैं, जिसको हरिकेन या साइक्लोन बोलते हैं। लाइफ ठप हो जाती है, बिजली, पानी की सप्लाई, लोगों का धंधा, फैक्ट्री तक बंद हो जाती हैं। ये कितना नुकसान होता है, और ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, सारी जोर है। ये देखिए साइक्लोन या हरिकेन किसी जगह पे अमेरिका में किसी में आया तो इतना पानी होगा, 2-3 दिन लगातार बारिश होने से इतना पानी ज्यादा हो गया कि लोगों को घरों से निकलना पड़ गया, सेफ जगह पे जाने के लिए बोट्स में निकलना पड़ गया। ये अमेरिका का सीन जैसी, और हमारे कंट्री में तो और भी ज्यादा नुकसान होता है। ये देखिए साइक्लोन की वजह से पानी भी हो रहा है, क्योंकि बारिश भी बहुत होती है साइक्लोन हरिकेन में, तेज हवाएं चलती हैं, घरों को डैमेज होता है, कई स्ट्रक्चर बड़ा डैमेज हो जाता है। ये समुद्री तूफान का एक सीन है। ये बॉम्बे में फ्लड है। ऐसा नहीं कि बॉम्बे में फ्लड पहले नहीं आते, अब भी आते हैं, पर अब ज्यादा विनाश होता है, ज्यादा देर तक उसका होता है। ये बात है। ये भी बॉम्बे का है। ये केरला में 2 साल पहले, 3 साल पहले काफी ज्यादा फ्लड आया था, बहुत ज्यादा, और बहुत लंबा चौड़ा एरिया इफेक्ट हुआ था, बहुत लोग भी मरे थे, घर डैमेज हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ था। ये भी सर केरला का है। ये दिल्ली का है। ये देखिए ये कर्नाटका में जंगलों में आग लगने का एक सीन है, कर्नाटका में, हमारे साउथ में। ठीक है, और ये उत्तराखंड में जंगलों में आग का एक सीन है। मतलब बात ये है कि ये जो जंगलों में आग है, ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, पहले भी होता था, पर पहले कुछ थोड़े से एरिया में गैस आग लगी, बुझा दी गई, पर अभी इतनी लंबे एरिया में आग लगती है, बुझाना मुश्किल होता है। पशु मरते हैं, जीव जंतु मरते हैं, और जंगलों में जिनके घर होते हैं वो नाश हो जाते हैं। बात तो ये है, और इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको मैनेज करना हमारा काम है। ये हमारे इंडिया का सीन है। लोग कैसे घरों में फ्लड की वजह से घरों में पानी घुस रहा है, तो अपनी सेफ जगह पे जा रहे हैं। ये लड़की को देखा आपने, इसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। इसके बारे में सुना कभी? यस सर। सुना है? तो ये लड़की जो है ये इंडियन की है, और ये बहुत ज्यादा लंबी उम्र की नहीं है, ये 15-16 साल की है, और स्वीडन की है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, इसके ऊपर तो आपको पता ही होगा कि सारी कंट्री की चिंता है, हिंदुस्तान की भी चिंता है, सबकी चिंता है, बड़े छोटे सभी की है। और यहाँ पे पेरिस में इनका एक एग्रीमेंट भी हुआ था कि हम कुछ करेंगे, हमें कुछ करना चाहिए। पर अमेरिका जो है, इसमें इसका जो प्रेसिडेंट था ट्रंप था, ट्रंप था, उसने कहा था कि मैं इस ग्लोबल वार्मिंग में बिलीव नहीं करता। आई डू नॉट बिलीव ग्लोबल वार्मिंग, देयर इज नो ग्लोबल वार्मिंग, देयर इज नथिंग लाइक दैट। उसको साइंस की कुछ नॉलेज कम थी, तो उसने ये कह दिया कि मैं, अमेरिका जो इस एग्रीमेंट से विड्रॉ करेगा,
जो दुनिया एग्रीमेंट पेरिस में हुआ है उसमें मैं विड्रॉ करूंगा। तो अब ये लड़की ने ये एक बड़ी अच्छा स्टेप लिया, उसने अपने कंट्री स्वीडन से शिप में, एक बोट में, समुद्र के अंदर चलने वाली बोट में बैठी, और जो बोट के अंदर जो पावर का यूज था वो सोलर पैनल से था। इसके बोट में रही है, सोलर पैनल लगे हैं, तो इसने ये एक मैसेज दिया कि सोलर एनर्जी का ज्यादा यूज करें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। एंड शी ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम स्वीडन टू यूएसए, स्वीडन से यूएसए में गई और प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने का टाइम के उससे बात की। उसने ये उसको मैसेज दिया कि आप हमारा इस बात को एग्री करो कि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, सारी दुनिया में इसका असर हो रहा है, आपको ये मानना चाहिए, और आप ना मान के अपने कंट्री को विड्रॉ करके एग्रीमेंट से आप हमारा फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। वी चिल्ड्रन, यू आर स्पॉइलिंग आवर फ्यूचर, यू आर स्पॉइलिंग आवर चाइल्डहुड। तो इसने बड़ा अच्छा मैसेज दिया था और इसको दुनिया लेवल पे रिकॉग्नाइज भी हुई। तो अभी ये मेरी एक लास्ट स्लाइड थी, तो अभी आपको जैसे कोई क्वेश्चन ना वो बताइए, बाकी करने लायक तो बहुत कुछ है जो आपको करना चाहिए। जो जहां भी कहीं सोलो, जहां भी करो, सोलर एनर्जी का यूज, ये देखो सोलर एनर्जी ज्यादा, क्योंकि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, नो पोल्यूशन, नो ग्लोबल वार्मिंग, और अपार बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल भी है। ये विंड एनर्जी मिल लगी है तकरीबन। और ये देखिए इरिगेशन पंप है, हरियाणा में एक सिस्टम भी है कि वो फार्मर्स को अपने जो इरिगेशन के लिए पंप है, डीजल इंजन ना चला के सोलर पैनल लगा के उसकी एनर्जी से चलाएं और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें, तो उनको काफी फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। हरियाणा की है, राज्य का भी होगा और दूसरे स्टेट का भी सिस्टम हो, तो वी शुड गो फॉर दैट। देखा ना, एक इरिगेशन पंप लगा है, सोलर पैनल लगे हैं और पीछे ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन का मतलब है कि एक छोटे रूम में आप फील्ड का इरिगेशन हो रहा है। फ्लड इरिगेशन होता है कि एकदम पानी छोड़ देना, तो पानी का इरिगेशन तो हो जाती है पर बहुत ज्यादा पानी बर्बाद होता है, तो पानी की वेस्टेज रोकनी बहुत जरूरी है। ये सोलर एनर्जी का यूज करके मदर डेयरी मिल्क दिल्ली के अंदर है, उन्होंने उससे सोलर एनर्जी को पावर नहीं बनाई, सोलर एनर्जी पानी को गर्म करने के सिस्टम लगाया है, और ये पानी गर्म करके बॉयलर में जाता है ताकि बॉयलर में थोड़ा हीट के लिए कोयला कम लगे। तो ये भी उनका सिस्टम लगा है। ये पर इनका इंपॉर्टेंस के लिए एक स्लाइड है जो आपको बताया। तो अभी आपका जितना भी हो सके आपने इन चीजों को देखना है। वाटर हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि वाटर की कंजम्पशन भी है, वो भी एक बिजली के साथ ही कनेक्शन है। जितने बोरवेल लगेंगे, जितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, उतना पावर का भी लगेगा। ये स्टार रेटिंग का जो मैंने आपको बताया वो है। तो इट इज नाउ। तो अभी आपका कुछ वक्त आवर है कितने के अंदर, ये 1 घंटे के लिए 28 मार्च को हर साल आप 8:30 से 9:30 इवनिंग लाइट बंद करने का एक आह्वान है। एक लोगों को कहा जाता है कि इससे ज्यादा पोल्यूशन को रोकने में या क्लाइमेट चेंज का भी एक डायरेक्शन स्टेप है। ठीक है, तो अभी आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछते हैं। एनी क्वेश्चन? Any question? No, sir. नो क्वेश्चन सर। I am sure the students must have got a great learning, sir. Sorry, I was not throughout in the session, attending other No things in the problem. college and the commitments. But I we know will that. try I know that. and I will try and put the session on YouTube. We are trying to do that Sure, so that sure. those who are not attending this right now because of other commitments can see this later. And thank you so much once again for your time, sir. And continuously speaking for such a long time is a big task. So I really salute your patience and your stamina. And the topic itself was so encouraging and thoughtful. And I think
the leadership which you have shown by actually introducing this, and basically, which is definitely related to our industry, is something which we were looking forward, and once again from our principal also, thank you so much, sir. And we really Thank you look very much. forward for more sessions and your physical presence in the college. Okay, sure. Thank you very much. Bye. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Ishita Thank you. ma'am and Kriti and Thank the you, people ma'am. who were coordinating and all the participants who were there. Thank you so much. Okay. Thank you, Thank you very ma'am. much. Thank you, sir.